धना करुणा प्रचुर ओके इससे पहले एक बार ना लेट्स डू वन थिंग, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इसको और मीनिंगफुली गाएंगे. So he who brought the treasure of divine love and who was filled with compassion and mercy, where has such a personality as Advait Acharya gone? So कहाँ गए वे अद्वैत आचार्य? Where are my Sarup Damodar and Rup Goswami? So Sarup Damodar Goswami is secretary of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So where are him and Rup Goswami? Where is Sanatan? Where is Raghunath Das, the savior of the fallen? Where are my Raghunath Bhatt and Gopal Bhatt? And where is Krishnadas Kaviraj? Where did Lord Gauranga, the great dancer, suddenly go? I will smash my head against the rock and enter into the fire. He is feeling so much separation. Where will I find Lord Gauranga, the reservoir of all wonderful qualities? Being unable to obtain the association of Lord Gauranga, accompanied by all these devotees in whose association he performed his pastimes, Narottam Das simply weeps. Jayanilo Premadhana Karuna Prachur. Jayanilo Premadhana Karuna Prachur. पाषाणे कोटिबो माथा नाले पाशिबो पाषाणे कोटिबो माथा नाले पाशिबो
हे सब संगेरा संगे जे कइलो बेला से संग ना पाइया कांदे नरोत्तम जे अनेलो प्रेमा धना करुणा प्राचो जे अनेलो प्रेमा धना करुणा प्राचो Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur, Vaishnav Thakur, Jayo Vaishnav Thakur. Jayo Bhakti Vinod Thakur, Jayo Bhakti Vinod Thakur, Bhakti Vinod Thakur, Jayo Bhakti Vinod Thakur. তোমার কুকুর বৈষ্ণব ঠাকুর আমি তোমার কুকুর জয় প্রভুপদা প্রভুপদা শ্রীল প্রভুপদা जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत हिन्नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। We will start by singing the pranam mantra of Srila Bhaktivinoda Thakur. So जो हम ये प्रणाम मंत्र बोलते हैं, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो ये प्रणाम मंत्र है श्रीला प्रभुपाद का। इसी प्रकार से हमारे बाकी आचार्यों के भी प्रणाम मंत्र हैं। सो विल फर्स्ट पे आवर हम्बल obeisances at the lotus feet of Srila Bhaktivinoda Thakur, who is the actually chief designer of this whole Krishna consciousness movement. So it is said that Srila Bhaktivinoda Thakur, he was the one who once again started this whole Krishna consciousness movement after Sri Chaitanya Mahaprabhu left this planet and entered into his eternal pastimes. So once Srila Bhaktivinoda Thakur came, he again established the whole principles of Gaudiya Vaishnavism. Uske baad we will discuss how he prayed to the Lord that I want someone who can actually expand it further, because now I am becoming aged. मैं अब aged हो रहा हूँ and I want someone जो इसको आगे ले जा सके. And by his request came Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, who is called as chief architect of this whole movement. And when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he wanted some successor, that someone should take this forward, कोई इसको और आगे ले जा सके. Then upon his prayers to the Lord came our very dear Srila Prabhupada. Yes. So the chief designer of this Krishna consciousness movement is Srila Bhaktivinoda Thakur. कुछ कह रहे हैं? आगे आ जाएं. So devotees आप थोड़ा आगे आ जाइए, so that if more devotees come, they can sit at the back. So you can repeat after me. Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate. Yes, so this was Pranam Mantra of Srila Bhaktivinoda Thakur. Okay. So Bhaktivinoda Thakur इस परंपरा में कहाँ पे आते हैं? सो हमारी परंपरा के कुछ मुख्य आचार्य हैं. सबसे लेटेस्ट मीन्स एज अ होल इस्कॉन में आवर वेरी डियर श्रीला प्रभुपाद, हिज गुरु महाराज इज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. हाँ, सो उनके जो गुरु महाराज हैं वो हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, और उनके जो गुरु हैं वो स्वयं श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हैं. लेकिन इनके बीच में एक और लिंक भी है, जो श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के खुद के फादर भी हैं, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर हैं. सो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने खुद के जो उनके पुत्र हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको खुद दीक्षा नहीं दी, उनको दीक्षा दिलवाई अपने ही एक और शिष्य से, जो कि हैं श्रीला गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, जो यहाँ से थर्ड पे हैं. सो ये हमारी आचार्य परंपरा है. सो ये 5 मुख्य आचार्य और 6 गोस्वामीज के नाम हम सबको याद होने चाहिए. सो 5 मुख्य आचार्य कौन कौन है? फर्स्ट लेटेस्ट वन श्रीला प्रभुपाद, हिज गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, देन हिज गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, देन श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, फिफ्थ उनके गुरु भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. यस. एंड हु आर द 6 गोस्वामीज? श्रीला रूप गोस्वामी, श्रीला सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी,
जीव गोस्वामी एंड श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी, परफेक्ट, यस। तो ये सबको याद होने चाहिए। ओके ठीक है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हटा देते हैं, बाद में लगाएंगे। बाकी 3 हाँ हम डिस्कस करेंगे। ओके, so as we all know that sometimes what happens is when the Lord comes to this material world to spread his message, भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। So why does Lord come? For a particular purpose, means to re-establish dharma once again so that people can follow that path. But the nature of this material world, जो इस भौतिक संसार का जो एक प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो क्या है? वो है टाइम के साथ हर चीज़ डिटेरियोरेट होती है, राइट? जैसे ये बिल्डिंग है, आज इसको सब कुछ छोड़ के हम चले जाएं बाहर और ये ऐसे ही रहे अगले 2-3 साल, ये खंडर बन जाएगी। यहाँ पर आपको फंगस दिख जाएगी, पेड़ पौधे आ जाएंगे, आपको चमगादड़ लटकते हुए दिख जाएंगे और 10 साल बाद आओ ये दिखेगी ही नहीं, 10-20 साल 50 साल 100 साल बाद इसका नामो निशान नहीं बचेगा। वाई? बिकॉज कृष्णा सेज इन गीता टाइम आई एम एंड आई एम द मोस्ट पावरफुल। सो टाइम क्या करता है? समय के साथ हर चीज़ नष्ट हो जाती है। सो सिमिलरली कलयुग के प्रभाव से, इवन जस्ट इस भौतिक संसार के प्रभाव से जो भी स्टार्ट होता है उसका अंत तो होता ही है। सो वेन एवर कृष्णा कम्स, whenever his different incarnations come, so they give dharma, they again re-establish dharma, but समय के साथ वो फिर से deteriorate होता जाता है। So time to time Lord has to send some of his representatives. भगवान अपने कुछ पार्षदों को भेजते हैं ताकि जो धर्म के जो पिलर्स हैं उनको वापस से खड़ा किया जा सके, right? So इसी तरह से sometimes when people are not very qualified like in the West, या फिर अगर हम अरब नेशंस की बात करें, लॉर्ड हैज़ टू सेंड प्रॉफिट मोहम्मद, ही हैज़ टू सेंड जीसस क्राइस्ट, इस तरह से। बट समटाइम्स ही वांट्स टू गिव द प्योर मैसेज ऑफ लव ऑफ गॉड। सो एट दैट टाइम ही सेंड्स हिज वेरी वेरी क्लोज एसोसिएट्स, जो उनके बहुत ही अंतरंग पार्षद होते हैं, जो उनकी खुद की लीलाओं में बहुत क्लोजली उन्हें सर्व करते हैं भगवान को। सो कई बार भगवान उनको भी भेजते हैं अपना प्योर मैसेज को फिर से रिस्टैब्लिश करने के लिए। सो उन्हीं के ही एक ऐसे अंतरंग पार्षद हैं जिनका नाम है श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर इस भौतिक संसार में। अदरवाइज इन कृष्णाज इटर्नल पास्ट टाइम्स ही इज देयर इन एज हिज इटर्नल एसोसिएट। ओके, ऑल राइट। सो श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर की अगर हम बात करें तो उससे पहले लेट्स डिस्कस कि ये बात कब की है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 200 years after Lord Chaitanya left this planet. So Lord Chaitanya के almost उसी टाइम पे ही हमारे 6 गोस्वामीज हैं। And once the 6 गोस्वामीज went, उनके बाद जीव गोस्वामी के और शिष्य थे नरोत्तम दास ठाकुर, जिनकी हमने बात की थी, राइट? फिर नरोत्तम दास ठाकुर के ही फर्दर डिसाइपल हैं, उनका नाम है श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। एंड देन फर्दर हिज डिसाइपल इज श्रीला बलदेव विद्याभूषण। सो दीज आर द वेरी वेरी प्रोमिनेंट आचार्यस जिन्होंने इस परंपरा को एकदम प्रोटेक्टेड रखा है फिलोसफिकली, हर तरह से। जब भी कुछ अटैक होते थे इस फिलोसफी पे, दे वुड कट डाउन एवरी अदर फिलोसफी एंड दे वुड इस्टेब्लिश द प्योर गौड़िया वैष्णविज्म हर जगह पे। जिस प्रकार से एक बार क्या हुआ था कि बिकॉज जब औरंगजेब का अटैक हुआ था वृंदावन पे, सो वहाँ वृंदावन के सारे डीटीज़ को राजस्थान शिफ्ट किया गया था, एंड दैट टू पर्टिकुलरली जयपुर में, क्योंकि वहाँ पर जो राजा थे ही वॉज अ वैष्णव। हाँ, राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, ये सब वैष्णव थे। सो उनके जो हमारे जो मेन डीटीज़ थे, श्री श्री राधा गोविंद देव जी, राधा मदन मोहन जी, इनको जयपुर में ट्रांसफ़र किया गया था। अब जयपुर के जो राजा थे ही वॉज अ वैष्णव, बट वहाँ पर कुछ ऐसे डिवोटीज़ थे जो कहते थे कि राधा और कृष्णा जो है ये बोनाफाइड नहीं है, दे आर नॉट बोनाफाइड। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के साथ रखना इज़ नॉट बोनाफाइड, सो कृष्णा शुड बी वर्शिप्ड अलोन। बट दिस इज़ नॉट गौड़िया वैष्णव प्रिंसिपल। वी ऑलवेज वर्शिप the Lord with his energies, right? Lord with his eternal energy who is श्रीमती राधा रानी, because जहाँ पर एनर्जी ही नहीं है, how can there be energetic? भगवान है ही नहीं अगर उनकी अंतरंग शक्ति उनके साथ में नहीं है। so that is our गौड़िया वैष्णव प्रिंसिपल। but कुछ ऐसे so called वैष्णव भी नहीं बोलेंगे, right? so they were accusing कि ये ठीक परंपरा नहीं है। so उन्होंने क्या किया, राजा को ऐसे कुछ बोला। so now the king came to ask these Gaudiya Vaishnavas
कि ऐसा ऐसा मुझे सुनने को आया है, सो यू कैन डिस्कस अमंग्स योर सेल्फ हाउ यू वॉन्ट टू डू। तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कि वृंदावन में थे उस समय, एंड ही वॉज द डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ नरोत्तम दास ठाकुर, सो उनके पास से इन्विटेशन आया, एंड देन ही सेंट हिज वेरी डियर डिसाइपल बलदेव विद्याभूषण कि आप जाइए और उनको डिबेट में हराइए, जो भी ऐसा कह रहे हैं। सो बलदेव विद्याभूषण वेंट टू जयपुर टू प्रोटेक्ट दिस फिलॉसफी ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म, एंड ही डिड दिस डिबेट। बट फाइनली उन्होंने इनको बोला कि आपके पास इसका कुछ वेदांत सूत्र से कुछ अपना कमेंट्री है, बिकॉज अगर कोई भी वैष्णव संप्रदाय अपने आप को बोनाफाइड बताता है, तो उसकी एक कंडीशन ये होती है कि आपकी अपनी कमेंट्री होनी चाहिए वेदांत सूत्र पे, राइट। वेदांत सूत्र क्या है? जो पूरा जो वेदास हैं उनका जो फाइनल क्रक्स है, जस्ट वन लाइनर्स, हर चीज़ का वन लाइन ऐसे, उसको बोलते हैं वेदांत सूत्र, जो इतना पतला सा है, एंड इट हैज़ एवरीथिंग एज एफॉर्मिज्म बोलते हैं, एफॉर्मिज्म, हाँ, एफॉरिज्म मीन्स हर चीज़ सूत्रों में है, जस्ट एक एक लाइन में। बट ऐसा पद्म पुराण कहता है और ऐसा इवन गरुड़ पुराण में है कि वेदांत सूत्र का जो एक्चुअल कमेंट्री है जो श्रीला व्यासदेव जी ने दी है वो श्रीमद् भागवतम ही है। तो श्रीमद् भागवतम इज ओरिजिनल कमेंट्री ऑन वेदांत सूत्र विच श्रीला व्यासदेव gave. So our Vaishnavacharyas, Gaudiya Vaishnavacharyas, they never gave a commentary on वेदांत सूत्र, क्योंकि जब श्रीला व्यासदेव ने खुद कमेंट्री दी है हमारी जरूरत क्या देने की, राइट। बट दूसरे संप्रदायों में है भी सही, ठीक है, हमारे आचार्य का कोई बात नहीं। सो इसलिए जब वहाँ पर उनको बोला गया कि अगर आपका ये गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है ये प्रामाणिक है तो आपका इसमें कमेंट्री का है वेदांत सूत्र पे। सो एट दैट टाइम श्रीला बलदेव विद्याभूषण ही प्रेड टू गोविंद देव जी, क्योंकि गोविंद देव जी के डीटीज हैं और उनके साथ ही श्रीमती राधा रानी के विग्रह हैं और ये बात चल रही है कि इन विग्रह को अलग किया जाए, हाँ। सो देन ही प्रेड टू गोविंद देव जी, द होल नाइट ही डिड नॉट स्लीप, ही वाज जस्ट क्राइंग एंड प्रेइंग टू गोविंद देव जी कि आप ही कुछ मुझे बताइए कि हमारे संप्रदाय में जरूरत है ही नहीं, बिकॉज वी कंप्लीटली बिलीव इन द वर्ड्स ऑफ व्यासदेव, जो व्यासदेव ने दिया वो परफेक्ट है, हमें जरूरत ही नहीं है खुद से अलग से देने की। देन कृष्णा गोविंद देव जी ही केम इन हिज ड्रीम ऑफ बलदेव विद्याभूषण एंड ही सेड यू डोंट नीड टू वरी, आप बस लिखिए, आप कमेंट्री लिखिए और मैं आपको डिक्टेट करूंगा, एंड इट विल बी कॉल्ड एज योर कमेंट्री, कि आपने लिखी है। एंड ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला था, क्योंकि नॉर्मली जब वेदांत सूत्र पे जो कमेंट्री लिखी जाती है इट टेक्स मैनी ईयर्स, 10 साल लगते हैं इस कमेंट्री को लिखने में, राइट। क्योंकि वो जो सूत्र है वो एक एक लाइन में आपको पूरा इतने सारा जो वेदों का ज्ञान है वो एक एक लाइन में है, बट उसको कोई मिस इंटरप्रेट भी कर सकता है। जैसे कि जो मायावादी लोग होते हैं, राइट, जो मायावादी हैं वो उसी वेदांत सूत्र को मिस इंटरप्रेट करके मायावाद बता देते हैं, क्योंकि एक लाइन है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, एक मैथ्स की बुक है, हाँ, और एक फॉर्मूला शीट है, तो फॉर्मूला शीट के अंदर भी वही सब कंटेंट है जो पूरी मैथ्स की बुक में है, बट विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट, दैट फॉर्मूला शीट और मैथ्स की बुक, मैथ्स की बुक, बिकॉज इसमें इंडेक्स है, चैप्टर्स हैं, उसकी थ्योरी है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके बाद उसका पूरा लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स हैं, एंड देन देयर इज अ फॉर्मूला शीट ऑल्सो, राइट। बट अगर किसी ने पूरी पढ़ ली है बुक मैथ्स की, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सब कुछ कर लिए, देन दिस फॉर्मूला शीट इज इंपॉर्टेंट। बट अगर किसी को कुछ नहीं पता, क्या उसके लिए किसी काम की है फॉर्मूला शीट? नो। किसी को सिर्फ ये पकड़ा दो, कुछ समझ आएगा? नहीं आएगा। सो इसलिए एट दैट टाइम व्हेन Srila Baldev Vidyabhushan was praying to Govind Dev Ji, and then Govind Dev Ji came in his dream. He used to dictate this commentary on Vedanta Sutra, and Baldev Vidyabhushan used to write. And it is said that within 1 week he completed this commentary. एक वीक में पूरी कर ली उन्होंने, and राजा को दिखाई, see, this is our bona fide commentary on Vedanta Sutra, and this is Gaudiya Vaishnav commentary. And king said, yes, this is true. सही बात है ये। और इस तरह से our Gaudiya Vaishnav principles were established by Srila Baldev Vidyabhushan। और इस तरह से जो सो कॉल्ड दूसरे वैष्णव संप्रदाय था जो बोल रहे थे नहीं ये दिस इज़ नॉट बोनाफाइड, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है बोनाफाइड नहीं है, राधा रानी कृष्ण के साथ नहीं होनी चाहिए, उनको अलग होना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला। सो दे वर केप्ट क्वाइट बाय श्रीला बलदेव विद्याभूषण। सो दैट कमेंट्री केम टू बी नोन एज, एनीवन नोस, गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य। तो जब कोई कमेंट्री लिखता है तो उसका नाम आता है और पीछे उसकी कमेंट्री आती है, हाँ। बट बिकॉज दिस कमेंट्री वाज स्पोकन बाय गोविंद देव जी हिमसेल्फ, इसको बोला गया गोविंद भाष्य, कि गोविंद देव जी ने खुद ने बोली है, ये किसी और की कमेंट्री नहीं है, ही हिमसेल्फ स्पोक दिस, हाँ। सो आफ्टर दिस व्हाट हैपेंड वाज कि जब श्रीला बलदेव विद्याभूषण ही लेफ्ट दिस प्लैनेट, so the coming years, next 100-200 years, that was called as the dark period,
इन द हिस्ट्री ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। वाई? बिकॉज इस बीच में जो ये प्रचार का जो मूड था, इतना स्ट्रॉन्ग प्रचार का, दिस वॉज डिमिनिश्ड। तो जो मोस्टली जो गौड़िया वैष्णव थे, दे वर मोर और लेस सेटिस्फाइड विद देयर ओन भजन। हाँ, सो इन दैट period there were many great Vaishnavas। ऐसा नहीं था that Vaishnavas were not there in our lineage। बहुत से महान आचार्य थे, बहुत से महान वैष्णव थे, but they were all भजनानंदीज। भजनानंदीज यानी कि they would do भजन 24 hours। कुछ मिला, कुछ पा लिया, that's good, कुछ नहीं पाया, that's okay। जब तक भगवान चला रहे हैं चलेंगे, जब नहीं चला रहे हैं that's okay। लेकिन जो प्रचार का जो भाव था, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते 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 खत्म होने लगा। और जब ये प्रचार का भाव खत्म होने लगा तो उससे क्या हुआ, कुछ अप संप्रदाय उभरने लगे। अप संप्रदाय किसे बोलते हैं? 4 मुख्य संप्रदाय हैं। कौन कौन से? श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय एंड अवर्स ब्रह्म संप्रदाय। यस, ये 4 मुख्य संप्रदाय हैं। जो इन 4 संप्रदाय के बाहर जाते हैं या इनकी टीचिंग्स के अलावा कुछ फॉलो करते हैं या कुछ मिक्सिंग करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं अप संप्रदाय। राइट? मीन्स नाउ दे आर नॉट बोनाफाइड, और लेकिन ये अपने आप को संप्रदाय मानते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं अप संप्रदाय। सो जब प्रीचिंग जो है, रियल प्रीचिंग रुक जाती है तो ये अप संप्रदाय उठने लगते हैं। राइट? सो उस समय भी यही हुआ कि जब प्रचार रुकने लगा तो कुछ अप संप्रदाय आने लगे। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही बाद में बताते हैं कि उस समय तक कुछ 12 अप संप्रदाय थे। राइट? जैसे आतिबाड़ी, गौरांग नागरी, ये कुछ नाम है इस तरह से। और ये क्या करते थे, जो ओरिजिनल वैष्णव टीचिंग्स हैं उसी को ही मिस इंटरप्रेट करके इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि उनकी सारी पोटेंसी लॉस्ट हो जाए। राइट? जैसे एक आपने शायद कभी कुछ एक्सपीरियंस भी किया हो, कुछ देखा भी हो कि एक ऐसे लोग होते हैं, एक कैटेगरी है, उनको बोलते हैं सहजिया, प्राकृत सहजिया। अब ये लोग क्या करते हैं कि जो भगवान की जो बहुत अंतरंग लीलाएं हैं, जो कि एकदम जो मटीरियलिज्म है उससे बहुत परे हैं। Right? They're all pure, they're all transcendental, and with our material vision and with this contaminated vision, we cannot understand those pastimes of Radha and Krishna. But ये लोग क्या करते हैं, उसको बहुत ही गंदे से दिखाते हैं, and ये दिखाते हैं that देखो because Lord could do it, so we can also do it। ये ऐसे दिखाएंगे कि भगवान का हमारे अंदर प्रवेश होता है, अब हमारे थ्रू अब भगवान एंजॉय कर रहे हैं। अब जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसके अंदर राधा रानी ने प्रवेश किया, मेरे अंदर कृष्ण ने प्रवेश किया, अब हम जो भी गंदे काम करेंगे हम नहीं कर रहे, ये तो राधा रानी और कृष्ण कर रहे हैं। अभी इस तरह से क्या करेंगे, अपने गंदे कामों को फिलोसोफाइज कर देंगे और इसके ऊपर बुक्स भी लिख देंगे। राइट? इनके जो छोटे मोटे पैम्फलेट, मैगजीन वगैरह, और इस तरह से दुनिया में दिखाएंगे कि ये भक्ति है। राइट? सो कितना मतलब फिलोसफिकली गंदे काम कैसे कर रहे हैं ये कोई सीखे ऐसे लोगों से। सो आप देखोगे एकदम कुछ मेल होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एकदम बॉडी मेल है पर एकदम क्लीन शेव करेंगे, घाघरा चोली पहनेंगे, एक लिपस्टिक लगा के आ जाएंगे, कोई देख जाएंगे आपको ऐसे कार्टून बेहुदे से। वृंदावन में कभी जाओगे? अभी तो नहीं है, बट बोला जाता है कि पहले बहुत थे ऐसे लोग। राइट? सो ऐसे इनकी जो बैकग्राउंड है बहुत ही गंदा है। राइट? सो जब ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा उफनने लगे, सो एट दैट टाइम बिकॉज लॉर्ड सेज परित्राणाय साधूनाम एंड विनाशाय च दुष्कृताम, भगवान खुद ही विनाश करते हैं, उनके भक्त विनाश करते हैं ऐसे लोगों का। सो कृष्णा हैड सेंट सच अ वेरी डियर एसोसिएट ऑफ हिम हु इज श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर। सो भक्तिविनोद ठाकुर जब आए तो उस समय यही था। सो जो सो कॉल्ड वैष्णविज्म जो लोग पालन कर रहे थे वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। हाँ, एंड जो दूसरे पार्टी के लोग थे, बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट द ईयर 19th century बिकॉज श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वॉज बॉर्न इन ईयर 1838। मैं एक बार एग्जैक्ट देखता हूँ, द एग्जैक्ट ईयर वॉज yes 1838। so when Srila Bhaktivinoda Thakur he was born, so ये British era था। हाँ, so still English East India Company was in the rule। और जो उस समय इंग्लिश लोग जो थे उनका क्या वो था विजन वैष्णविज्म के प्रति कि ये सेंस ग्रेटिफायर्स हैं। मीन्स दीज पीपल दे डू ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस, दीज सो कॉल्ड वैष्णवास, ये अपने शरीर पर क्ले के कुछ अजीबोगरीब मार्क लगाते रहते हैं। और इनकी जो किताबें हैं ये सेंसुअल एक्टिविटीज से भरी हुई हैं। हाँ, कुछ लड़का है, लड़की है, लड़का लड़की के कपड़े चोरी कर रहा है, नदी में नहाती हुई लड़कियों के, ये कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं, एंड दिस इज ऑल नॉनसेंस। सो ये व्यूज़ थे ब्रिटिशर्स के वैष्णवों के प्रति। हाँ, सो ये ऐसा एटमॉस्फेयर था 1838 के आसपास जब श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का जन्म हुआ। सो नो वन प्रैक्टिकली न्यू
व्हाट एग्जैक्टली वैष्णविज्म वाज। इवन अगर बात करें साउथ इंडिया की, अगर हम इवन अभी इसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इवन जगन्नाथपुरी टेम्पल में मोस्ट ऑफ द पीपल दे वर मायावादीज। जो उनके खुद के पंडा थे, जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, ये भी मायावादी हैं। कहने को सेवा कर रहे हैं, बट इनकी जो इच्छा है वो है मुक्ति की, कि फाइनली मुक्ति हो जाएगी। लेकिन जो सेवा कर भी रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन मायावादीज, दे आर सेंस ग्रेटिफायर्स। वो केवल जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं बाहर से। इंटरनली दे डोंट हैव सच अ मूड ऑफ सर्विस। सो practically Vaishnavism was nowhere being followed as it was meant to be, as it was propagated by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and as it was given by his 6 Goswamis. So Srila Bhaktivinoda Thakur was born in 1838 in a district called as Nadia, the same district where Sri Chaitanya Mahaprabhu was born. And जो उनका गांव था उसका नाम था उलाग्राम, जिसको कि बोला जाता था बीरनगर। देखिए 2 नाम थे, बीरनगर और उलाग्राम। सो ही वॉज बॉर्न इन अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, बहुत ही ऊंचे कुल में पैदा हुए। एंड बोथ फ्रॉम हिज मदरली साइड एंड हिज फादरली साइड, सो बोथ साइड्स वर वेरी वेरी रिच, और दोनों ज़मींदार थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन थी। एंड इवन बोथ साइड्स हैड हंड्रेड्स ऑफ सर्वेंट्स, राइट। सो Srila Bhaktivinoda Thakur, when he was a small child, so he had his elder brothers, he had his younger brothers, but very soon what happened was two of his brothers, they died, and slowly and gradually he was the only one left in his family. But बहुत जल्दी ये भी हुआ, because his father was a very very charitable person, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो भी बहुत चैरिटेबल थे, और कुछ लोगों ने क्या किया, उनका मिसयूज़ करना स्टार्ट किया। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे केम इनटू डेप्थ, उनकी हेल्थ भी ख़राब होने लगी, एंड दे बिकेम वेरी वेरी डेस्टिट्यूट मीन्स वेरी पुअर, क्योंकि जो इतने अमीर परिवार में थे उनके पास इतनी ज़मीन थी कि उनको सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे बिकेम वेरी वेरी पुअर। सो लोग लेकिन अभी भी सोचते थे कि बिकॉज ये इतने ऊंचे खानदान से हैं तो उनके पास अभी भी बहुत पैसा होगा, बट प्रैक्टिकली दे हैड नथिंग नाउ। सो इन दैट circumstances, Srila Bhaktivinoda Thakur, he grew up. Yeah. So in the due course of time, when Srila Bhaktivinoda Thakur, he was growing up, so he somehow managed to go to a school. So जब ये स्कूल जाते थे तो उस समय पर इनके एक दोस्त थे, एंड देन दे बोथ वांटेड टू ईट सम फ्रूट किसी जंगल में जाके, बट वहाँ पर इट वाज सेड कि कुछ घोस्ट रहते हैं उस जंगल में। सो भक्तिविनोद ठाकुर एंड हिज फ्रेंड दे वांटेड टू गो। सो उन्होंने उनकी जो फ्रेंड की जो मदर हैं उनसे पूछा कि हाउ कैन वी गो। सो उनकी माता जी ने बोला दैट इफ़ यू चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम, तो आपको भूत जो है कभी पीछे नहीं पड़ेगा। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बिकेम वेरी मच अटैच्ड टू दिस नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। सो जब भी वो जाते थे हमेशा राम 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 चैंट करते हैं। यूज्ड टू लाइक इट वेरी मच कि जब भी मैं राम नाम चैंट करूँगा मीन्स को मुझे पीछे कोई भूत नहीं पड़ेगा। तो जब भी जाते थे कभी ऐसी जगह पे, नाउ ही वाज नेवर अफ्रेड, ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू चैंट द नेम्स ऑफ लॉर्ड राम। सो इस तरह से व्हेन ही ग्रू अप, सो हिज फादर ही पास्ड अवे, एंड प्रैक्टिकली बिकॉज वंस इट हैपेंड कि उनके गाँव में एक बार कॉलेरा फैल गया, हैज़ा, जिसमें प्रैक्टिकली उनकी पूरी फैमिली ही इट होल डाइड, उनकी पूरी फैमिली ही मर गई। सो व्हाट हैपेंड वाज द ओनली पर्सन्स लेफ्ट वाज हिज यंग वाइफ, बिकॉज उस समय पर क्या होता था, द चिल्ड्रन वर मैरिड वेरी अर्ली इन एज। तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वाज मैरिड बाय हिज मदर व्हेन ही वाज जस्ट 12 years old। उन्हें पता भी नहीं था क्या चल रहा है, ही वाज मैरिड दैट अर्ली। सो व्हेन दिस कॉलेरा हैड स्प्रेड इन हिज विलेज, सो ओनली हिम, हिज मदर एंड हिज वाइफ वर लेफ्ट एट दैट टाइम। So later on, Srila Bhaktivinoda Thakur was sent to Calcutta for his further studies. But this question was always in his mind, that why do we die? What is the reason that we come to this life, that we come to this world? What is the final goal? तो वो कई बार स्कूल जाया करते थे, बट स्कूल में उनका मन नहीं लगता था। स्कूल जाकर भी वो इन्हीं टॉपिक्स के बारे में ही पढ़ रहे होते थे। एंड समटाइम्स बिकॉज जब वो स्कूल जाते थे, सो उनके टीचर्स जो थे वो हरास किया करते थे। सो इट वॉज अ वेरी ह्यूमरिस्टिक पास टाइम कि जब वो छोटे थे तो उनके टीचर्स जो हैं उनको मारा करते थे कई बार, बाकी सारे बच्चों को लाइन से लगा के मारते थे, लेकिन जो बच्चा टीचर के लिए कुछ लेके जाता था उसको छोड़ देते थे।
सो कई बार कोई उनके लिए कोई चीज़ लेके जा रहा है, कोई फ्रूट लेके जा रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर एक बार घर से पूरा कटहल ले गए, इतना बड़ा। सो जब उनकी मदर को पता लगा भक्ति विनोद ठाकुर की, बहुत गुस्सा हुई, कितना बड़ा कटहल घर से गायब है। सो उनकी टीचर को जाकर उन्होंने दिया और टीचर भी एम्बेरस्ड हो गया कि मेरे लिए इतना बड़ा ले आए। एंड देन ही टोल्ड कि आगे से ऐसी बड़ी चीज़ मत लाना, उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ लाओ तो छुपा लूँ मैं। तो बाकी बच्चे कुछ पान, गुटखा, सुपारी टीचर लेके पीछे डाल लेता था। सो एक बार जो भक्ति विनोद ठाकुर जी के बड़े भाई थे वो बहुत शैतान थे, तो छोटे भाई थे उनके। सो एक बार उनको मारा उनके टीचर ने। सो दिस यंगर ब्रदर ही टुक वन सौ पता है ना, आरी होता है, मतलब 100 आई थिंक वो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में, बर्छा। वो उसके घर पे ले गए एंड ही वाज जस्ट अबाउट टू हिट हिज टीचर। पीछे भक्ति विनोद ठाकुर आए, उनको रोक लिया, नहीं करना। एंड द टीचर वाज सो अफ्रेड ही लेफ्ट द स्कूल उसी समय। सो दिस वाज सम पास टाइम ऑफ हिज स्कूल लाइफ। सो लेटर ऑन when almost his complete family had died in that cholera, so Srila Bhaktivinoda Thakur was studying in his college in Calcutta. So there also, because he was in a great financial need, because उनकी family के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, he had to maintain his wife, his mother, but इनके पास कुछ भी पैसे नहीं है. So he was at that time also writing different books, क्योंकि till now, because when acharyas they come, वो इस तरह से अपनी लाइफ को प्रेजेंट करते हैं कि वो भक्त पहले नहीं थे एंड देन दे स्ट्रगल्ड अ लॉट एंड दे बिकेम अ डिवोटी. हाँ, आचार्यस दे डोंट प्रेजेंट कि वो शुरू से ही नित्य सिद्ध भक्त हैं, भगवान के धाम से आए हैं. क्यों? बिकॉज दिस वे दे सेट एन एग्जाम्पल फॉर अस कि केवल हमारी ही लाइफ में दुख नहीं है, केवल हमारी ही लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं आते. द स्ट्रगल्स कम इन द लाइफ ऑफ द आचार्यस ऑल्सो. और वो कैसे उन स्ट्रगल से लड़ते हैं, उनसे ऊपर उठते हैं एंड दे बिकम प्योर डिवोटीज. सो वो इस तरह से अपनी लाइफ की जर्नी को प्रेजेंट करते हैं दैट दे बिकेम प्योर डिवोटीज, बट इट डजंट मीन दैट दे वर नॉट प्योर डिवोटीज प्रीवियसली. तो ऐसे हमारे जो आचार्य हैं ये शुरू से ही नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, बट दिस इज देयर पास्ट टाइम्स जब यहाँ पर आते हैं. ओके, सो देन Srila Bhaktivinoda Thakur, he became a very very big scholar. He studied English at his home, so he used to study different languages. He used to study, but उनका जो फेवरेट था वो था फिलोसफी. तो इसका चार्जर होगा, वो यहाँ पे देख लोगे, इसको चार्जिंग पे लगाना है, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा. हाँ ये नहीं, ये नहीं है, दूसरा होगा, देखना यही है, दूसरा होगा, ये रहा यहाँ पे कहीं होगा. हाँ ये है, इसको मुझे दे दो. सो उनका जो फेवरेट सब्जेक्ट था वो था फिलोसफी. सो एट हिज इवन स्कूल टाइम ऑल्सो ही यूज्ड टू लर्न फिलोसफी एंड ही यूज्ड टू बंक स्कूल फिलोसफी पढ़ने के लिए, because he didn't like his teachers. So finally he was trying for some job कि उनको कुछ job वगैरह मिल जाए so that he can at least maintain his family. And then when he was searching for his job and he was still not getting, and finally he got a job as a teacher, as a primary school teacher, I mean 5th grade teacher. सो वो उनको पढ़ाया करते थे स्कूल में. उनकी सैलरी जो थी उस समय दैट वाज 15 रुपीज़ पर मंथ. बट स्टिल व्हाइल ही वाज टीचिंग ही गॉट अ लेटर फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर, बिकॉज हिज ग्रैंडफादर एट दैट टाइम वाज लिविंग इन ओडिशा. सो ओडिशा से उनको मैसेज आया दैट ही इज़ गोइंग टू लीव हिज बॉडी वेरी सून. तो उनके जो ग्रैंडफादर थे ही वॉज ऑलरेडी अ सन्यासी. उन्होंने कुछ समय पहले जब अपनी सारी मटीरियल ड्यूटीज़ पूरी हो गई, ही वेंट टू ओडिशा, जगन्नाथपुरी. ही कॉल्ड him Bhaktivinoda Thakur. So उनका जो पहले नाम था वो था केदारनाथ दत्त. He called Kedarnath Dutt and he said to him that you will become a very great Vaishnava. You please stay here with me for 1 or 2 days. So उनके जो grandfather थे he was an astrologer. He could see कि ये केदारनाथ दत्त जो है he is not an ordinary person. He could see. So उन्होंने बोला, और जो आप जो अभी कोशिश कर रहे हो कि जॉब के लिए इस बिकॉज योर लाइफ इज़ अनस्टेबल, एट द एज ऑफ 27 यू विल बिकम अ वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल मैन. हाँ, सो टिल दैट टाइम अभी आपको थोड़ा ऐसे चलना पड़ेगा, बट एट द एज ऑफ 27 यू बिकम वेरी रिस्पेक्टेबल एंड यू विल बिकम अ वेरी वेरी ग्रेट वैष्णवा. सो यू प्लीज स्पेंड 2-3 days विद मी हेयर. उसके बाद मैं अपना शरीर छोड़ने वाला हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ 2-3 दिन रुक जाओ. तो भक्तिविनोद ठाकुर स्टेड देयर फॉर 2-3 days एंड आफ्टर दैट हिज ग्रैंडफादर लेफ्ट हिज बॉडी. सो उनको उसके बाद एक इन्विटेशन आया दैट ही कुड बिकम अ स्कूल टीचर नियर उड़ीसा, समवेयर इन उड़ीसा नियर जगन्नाथपुरी टेम्पल. तो वहीं पास में ही एक और गांव था. ही बिकेम अ स्कूल टीचर देयर.
बट बिकॉज ही वॉज स्टिल राइटिंग बुक्स, अभी तक जो उनकी बुक्स थी वो भक्ति वाली एग्जैक्ट नहीं थी, बट दे वर वेरी फिलोसफिकल, क्योंकि श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर बचपन से ही भगवान के बारे में सोच रहे थे, उनकी खोज किया करते थे, डिफरेंट फिलोसफीज पढ़ेंगे. समटाइम्स ही यूज्ड टू रीड वेस्टर्न फिलोसफीज, समटाइम्स ही यूज्ड टू रीड कुरान, समटाइम्स ही यूज्ड टू रीड बाइबल. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्शन मिल जाए गॉड का. एंड बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन अ बंगाली फैमिली in this district called as Navdweep, Nadia district. So he was born there. So उनकी जो फैमिली थी that was the follower of Shakta means जो कि काली वर्शिप करते हैं. So बचपन से ही वो देखा करते थे कि उनके घर पे जब भी दुर्गा पूजा होती है तो कुछ ऐसे ब्राह्मण आते हैं जो कि केवल मटन खाने आते थे, कि बकरे का बलि देंगे, मटन खाएंगे. उनको बचपन से ही लगता था कि ये तो सही रास्ता नहीं हो सकता, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि आप इन इनोसेंट जानवरों को मारो और इनको ही आप खा जाओ. बट ही यूज्ड टू लाइक अदर फेस्टिविटीज़ ड्यूरिंग दुर्गा पूजा, बट ये उनको सबसे ख़राब लगता था कि जब वो देखते थे ब्राह्मण आ रहे हैं केवल मीट के ऊपर बस कूदने के लिए, अभी हम खाएंगे. सो ही वॉज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, ही वॉज मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स द अदर religious forms, but within him there was some desire to know about Vaishnavism. So slowly this desire increased and increased and increased, and when he was in Odisha in this school, he was a teacher, he started reading a lot of books in that library about Vaishnavism, about different other philosophies. तब उनके अंदर इच्छा आई that I want to know more about Gaudiya Vaishnavism, I want to know about Chaitanya Mahaprabhu, I want to know about his 6 Goswamis. बट तब तक जो सिचुएशन थी इतनी ख़राब हो चुकी थी दैट देर वॉज नॉट इवन अ सिंगल कॉपी ऑफ ओरिजिनल ऑथेंटिक श्रीमद् भागवतम एंड चैतन्य चरितामृता ईजिली अवेलेबल. एक भी कॉपी नहीं मिल रही थी उनको. सो ही सर्च फॉर नेक्स्ट, इट इज सेड 7 years टू सर्च फॉर अ सिंगल कॉपी ऑफ श्री चैतन्य चरितामृत, क्योंकि उस समय तक इतनी ज़्यादा उनकी जो फिलॉसफीज है डिटोरेट हो गई थी. कहीं पे महाप्रभु को कृष्ण बताकर कुछ लोग खुद भी बता रहे हैं कि मैं ही महाप्रभु हूँ, मैं ही लीला करता हूँ. हर ऊट पटांग चीज़ जो हम सोच सकते हैं वो उस समय हो रही थी. सो एट दैट टाइम श्रील भक्तिविनोद ठाकुर टुक 7 years and he finally found one original copy of Sri Chaitanya Charitamrita. Yeah. How did he know that it's the original copy? That it is original copy. Because there were at that time some भजनानंदीज also. भजनानंदी वो होते हैं जो कि भजन करते हैं, उनके पास सारी फिलॉसफी सब कुछ ज्ञान होता है उनको, बट दे आर नॉट प्रीचिंग समहाउ. जैसे श्रील प्रभुपाद से जब किसी ने पूछा था कि श्रील प्रभुपाद आर यू द ओनली प्योर डिवोटी ऑन द अर्थ, प्रभुपाद सेड नो, देयर आर मेनी प्योर डिवोटीज एंड आई एम वन ऑफ द प्योर डिवोटीज, बट आई एम द ओनली प्योर डिवोटी इज ऑल्सो प्रीचिंग. सो उस समय भी कुछ प्योर डिवोटीज थे जिनसे भक्तिविनोद ठाकुर टच में रहते थे. ही यूज्ड टू आस्क देम, बट समहाउ that copy was not to be seen. ठीक है? Okay. Yeah. So finally when Srila Bhaktivinoda Thakur, he got that copy, so he had this intense desire to preach this message far and wide. Yeah. So during his lifetime, Srila Bhaktivinoda Thakur wrote more than 100 books in glorification of Krishna and on this pure Gaudiya Vaishnava philosophy. And जब वो Bhaktivinoda Thakur ji, he was in Puri. So at that time he was also trying to look for different other sources of income. And because he was a very great philosopher, very great theologist, so he was offered a role of district magistrate by the government of the British government at that time. जब उनको ये role offer किया गया, so he became the deputy magistrate, means the judge, and he was very very efficient in his work. So जो बाकी जज लोग थे and they used to work for many hours, so जो काम वो आधे घंटे में करते थे, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर could do that work in 5 minutes. So एक दिन में वो 40 से 50 केस निपटा दिया करते थे. So this was the prophecy of his grandfather कि एक दिन आप you will become a very big gentleman, आप एक बहुत बड़ी पोस्ट पे आएंगे and you become a very great Vaishnava. So now it was coming true. So he got this very big post of deputy magistrate. So उस समय पर ये जो पोस्ट थी, this was the biggest post any Indian could get in the
British government. So Srila Bhaktivinoda Thakur was offered this post. So now he was taking care of his family. He was also like working as a deputy magistrate. अब इसके बाद हम देखेंगे कि उनका डेली शेड्यूल क्या होता था, because now by this time he had read Sri Chaitanya Charitamrita and he took some gap from his duties, from his job as a deputy magistrate, just to read Srimad Bhagavatam along with some very very qualified devotees who could teach him Srimad Bhagavatam. So उनके साथ में उन्होंने just इसलिए break लिया so that he could study Srimad Bhagavatam very extensively. So उनका जो schedule रहता था वो ये था, when he was at Puri. So at Puri he was district magistrate, and the government of the British government of India at that time also made him the in charge of the Jagannath temple in Puri. He was looking at the whole temple and the whole city of Puri. So at that time even there was a lot of corruption in the Puri temple. So he made sure that everything becomes very very smooth and in line. So उनका जो schedule था वो ये था, he would sleep for 2 hours. रात को 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे सोएंगे, 10 बजे उठेंगे, and from 10 to 4 AM सुबह 4 बजे तक 6 घंटे he would translate books from Sanskrit to Bengali या फिर to English. कुछ books he wrote in English, कुछ he had translated from Sanskrit to Bengali, क्योंकि जो भी कुछ भ्रांतियाँ फैली हुई थी पूरे बंगाल में, पूरे उड़ीसा में वैष्णविज्म के रिगार्डिंग, कुछ गलत जो कि धारणाएं फैली हुई थी, उन सबको हटाने के लिए, उन सबको काटने के लिए, हाँ, सो ही यूज्ड टू ट्रांसलेट द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द 6 गोस्वामीज, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम, पद्म पुराण, ही यूज्ड टू ट्रांसलेट फ्रॉम संस्कृत टू वेरी इजी बंगाली, जो कि आम लोग समझ पाएँ. सो ही यूज्ड टू राइट फ्रॉम नाइट 10 o'clock टिल मॉर्निंग 4 AM. तो सुबह 4:30 से लेकर 7 बजे तक, 4 बजे से लेकर 4:30 तक आधा घंटा ही वुड टेक रेस्ट वंस अगेन. सो 2 घंटे रात को रेस्ट लिया और सुबह 4 से 4:30 आधा घंटा फिर से रेस्ट लिया. अब 4:30 बजे ही वुड वेक अप एंड 4:30 to 7 2.5 घंटा ही वुड चैंट. सो फ्रॉम 7 to 7:30 ही वुड डू कोरस्पॉन्डेंस, मीन्स वो कुछ जो लोग होंगे उनसे मिलने आए हैं, उनसे बातचीत करनी है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स हैं. सो आधा घंटा ही वुड टॉक टू पीपल. Then 7:30 to 9:30 2 घंटा he used to study शास्त्रास, वो अपना खुद का हियरिंग रीडिंग करेंगे. So from 9:30 to 10 he would take bath and he would take प्रसादम. So और प्रसादम में उनकी डाइट क्या थी? 1/2 liter मिल्क, कुछ फ्रूट and 2 chapatis. This was his diet. And 10 o'clock he would leave for his court duties. वो अपने कोर्ट चले जाएंगे because he is the judge, ही इज डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट. सो 10 से 1 वो अपनी कोर्ट की ड्यूटीज़ करेंगे. 1 बजे फिर घर आएंगे. 1 से 2 ही वुड रिफ्रेश, थोड़ा सा बाथ लेंगे, हाँ, एंड नो प्रसादम इन द आफ्टरनून. सो फ्रॉम 1 to 2 ही वुड रिफ्रेश एट होम एंड 2 o'clock to 5 o'clock अगेन ही वुड गो टू कोर्ट. वहाँ पे जो उनकी ड्यूटीज़ हैं कोर्ट की. 5 o'clock ही वुड कम बैक होम और 5 बजे से 7 बजे तक ही वुड ट्रांसलेट संस्कृत शास्त्र टू बंगाली. फिर से अगेन ट्रांसलेशन. सो 6 घंटे ट्रांसलेशन उन्होंने की रात में, 2 घंटे दिन में. एंड देन 7 o'clock to 8 o'clock ही वुड टेक बाथ वंस अगेन इन द इवनिंग. ही वुड टेक प्रसादम, और प्रसादम में क्या लेंगे? 1/2 liter मिल्क, राइस एंड 2 chapatis. दैट्स इट. एंड अगेन 8 o'clock ही वुड टेक रेस्ट 8 से 10 बजे एंड अगेन कंटिन्यूड. सो टोटल स्लीप इज 3 hours. Total writing which he does, translation, is 8.5 hours. His japa, his own japa and his study is 4.5 hours. और जो बाहर काम करते थे that is 6 hours. So this is Acharya. So not even a single moment is wasted in sense gratification. That is the example that our Acharyas set. Each and every second, each and every breath that they take is in Krishna's service. So once what happened was कि जब वो पुरी में ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, सो एक बहुत ही अजीब सा केस आया उनके पास. और एक केस था कि एक आदमी है, हाँ, और ये अपने आप को विष्णु का अवतार बोलता है. ये कहता है कि मैं ही विष्णु हूँ और जो भी दुनिया में सब कुछ चल रहा है मेरी वजह से चल रहा है. और ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर जी को ये पता लगा कि ये बहुत सारी लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है.
उनकी जो वाइव्स हैं, उनकी जो डॉटर्स हैं, उनको बुलाता है और बोलता है क्योंकि मैं विष्णु हूँ तो मैं ही कृष्ण हूँ, तो मैं ही रासलीला करता हूँ और तुम सब गोपीज हो और मेरे साथ रासलीला करो। और इस तरह से ही वुड एक्सप्लॉइट देम। हाँ, तो जब ये केस श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के पास आया, बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो न्यू कि अगर ऐसे किसी बंदे पे केस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया तो उनके खिलाफ सारे लोग खड़े हो जाएंगे एंड उनकी गवर्नमेंट खतरे में आ जाएगी। सो दे अपॉइंटेड केदारनाथ दत्त, क्योंकि बिकॉज ही इज़ इंडियन, अगर ये कुछ एक्शन लेते हैं तो भाई तुम्हारे इंडियंस ने लिया है, हमारी गलती नहीं है। हाँ, सो दिस केस केम टू भक्तिविनोद ठाकुर। सो भक्तिविनोद ठाकुर ऑलरेडी वांटेड टू कट डाउन ऑल सच अप संप्रदायस, और ये जो आदमी था इसका नाम था बिस किशन। हाँ, बिस किशन। सो दिस बिस किशन ही बिलोंग टू एन अप संप्रदाय जिसका नाम था आतिबाड़ी संप्रदाय, जो कि उड़ीसा में पहले बहुत ज़्यादा फेमस था। हाँ, एंड इंटरनली दीज पीपल आर मायावादीज। बाहर से अपने आप को कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवतम पढ़ते हुए दिखा देंगे, बट दे आर फैक्चुअली मायावादीज एंड दे आर सेंस ग्रेटिफायर्स। बाहर से वैष्णव तिलक में भी दिख जाएंगे कहीं ना कहीं। सो व्हेन भक्तिविनोद ठाकुर गॉट टू नो अबाउट इट, सो जो वहाँ के लोग थे वो उसके सपोर्ट में थे, क्योंकि जो भोले वाले लोग हैं गांव के, उनको बोलो यही महाविष्णु है, यही विष्णु, मान जाएंगे। और उसके पास कुछ सिद्धियाँ भी थी। सिद्धियाँ यानी कि कुछ मैजिकल पावर्स जो कि कुछ योगिक मिस्टिसिज्म में मिल जाती हैं। जैसे हमने एक बार डिस्कस किया था, राइट, कि जब कोई अष्टांग योग प्रैक्टिस करता है तो उसको कुछ सिद्धियाँ मिलना बहुत मामूली सी बात है। जैसे ही कैन लिफ्ट हिमसेल्फ इन द एयर, ऐसे करेगा कुछ सेब आ जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन है। सो दिस पर्सन वॉज अ मिस्टिक योगी ऑल्सो, इसके पास कुछ सिद्धियाँ भी थी। सो कुछ फूक मारेगा, बाहर हल्का सा तूफान चल जाएगा, ऐसे करेगा आग लग जाएगी। ही कुड रीड समवंस माइंड, किसी के मन में क्या चल रहा है, और लोग सोचें अरे भाई ये तो भगवान है, सच कह रहे हैं ये तो, और अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लिया, इसकी कुछ शिकायत की पुलिस में, तो मे बी हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। सो लोग खुद ही, कुछ गांव वाले अपनी वाइफ्स को, अपनी डॉटर्स को भेज दिया करते थे उसके पास। हाँ जाओ 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 भाई, भगवान है, ठीक है, क्या जा रहा है, भगवान ही तो अपनी शक्ति को बुला रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, जाओ जाओ जाओ, उसके द्वारा एंजॉय हो जाओ। हाँ, सो दिस वे ऑल दिस नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन। सो जब केदारनाथ दत्त यानी श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर को पता लगा इस बारे में, ही वॉज वेरी वेरी फ्यूरियस। सो ही वेंट देयर विद अराउंड 100 सोल्जर्स, बिकॉज ही वॉज अ डिस्ट्रिक्ट डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट, तो उनके पास ये पावर्स होती हैं। ही वॉज एट अ वेरी वेरी हाई पोजिशन एट दिस टाइम। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि उनको इतनी हाई पोजीशन की ज़रूरत क्या थी, राइट, वैष्णव है, वैष्णव कैन मैनेज विद एनीथिंग, व्हाई डिड ही टेक सच अ हाई पोजीशन? बिकॉज एट दिस टाइम वैष्णविज्म का जो एक नोशन था लोगों के मन में, बहुत ही लो क्लास हो चुका था कि वैष्णव क्या है, कुछ नहीं है, तुच्छ है, क्या है, कुछ नहीं। हाँ, कि वैष्णव मतलब, बिकॉज एट दैट टाइम द कंसेप्शन वाज कि जो भी अपने आप को बोलता था मैं गौड़िया वैष्णव हूँ, तो लोग ये सोचते थे कि बस ये कुछ करताल बजाएगा, भीख मांगेगा, रोटी खाएगा, बस चला जाएगा। हाँ, उस समय यही था। लोग इवन इस लेवल पे आ भी चुके थे, करताल बजाएंगे और यही बोलेंगे कि भाई नित्यानंद के नाम पे कुछ दे दे बाबा, नित्यानंद के नाम पे कुछ दे दे। हाँ, बंगाल में यही चल रहा था। सो ये, बट आवर फिलोसफी इज सो हाई, एंड दीज पीपल जो कि ऐसे कुछ भीख मांग रहे हैं, ये सब, दैट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग आवर एक्चुअल फिलोसफी। हाँ, दे आर नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आवर 6 गोस्वामीज। हमारे जो 6 गोस्वामीज थे, दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग नवाब हुसैन शाह, and that he was the most powerful king, and these 2 brothers Rupa and Sanatan Goswami, they were the most educated people. They were the most educated in the entire globe. इसलिए उन्होंने इनको अपॉइंट किया था that you become my ministers, my cabinet ministers, so that when you lead, then our empire will prosper. So these are the 2 representatives of the philosophy of Lord Chaitanya. But अब जो हालत हो गई थी, no one knew about the 6 गोस्वामीज। जो भी जानता था बस यही जानता था कि नित्यानंद के नाम पे कुछ दे दे, या फिर भगवान के नाम पर कुछ रासलीला करनी है, दैट्स इट। दिस ऑल नॉनसेंस वाज गोइंग ऑन। बट जब श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर केम, ही वाज अ डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट, हर एक बंदा उन्हें आके प्रणाम करता था, एंड देन ही यूज्ड टू गो टू कोर्ट वेयरिंग तिलक। he would shave his head once in a month, and he would put on a big tilak, and this way he used to go to the court. इस तरह से जब वो जाते थे, and then everyone would bow down. इस तरह से, because he was again setting up that being a Vaishnav is not cheap. It is the highest thing one can ever attain in many lifetimes. In billions of lifetimes, one never gets this opportunity to become a Vaishnav. So Srila Bhaktivinoda Thakur, through his example, was setting that being a Vaishnav is not cheap. So ये भगवान का arrangement था, making him a deputy magistrate,
और इस तरह से उनको ऐसी ऐसी पोजीशंस पे लाना कि वो प्रचार कार्य बहुत ही बड़े लेवल पे कर पाएँ. So this time when he went there to chastise this so-called Mayavadi, this Mayavadi so-called incarnation of the Lord, whose name was Biskisson, he went there. अभी वो अंदर गए नहीं थे और अंदर से उनको आवाज़ आई, केदारनाथ दत्त, मुझे पता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हें बोलूँगा कि तुम वापस चले जाओ और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि एक दिन तुम्हें मैं राजा बना दूँगा, लेकिन तुम वापस चले जाओ. तुम जानते नहीं कि मैं ही विष्णु हूँ और विष्णु होने के नाते तुम्हें मैं बहुत आसानी से राजा बना सकता हूँ. और भक्तिविनोद ठाकुर ही वॉज नॉट अफ्रेड. उनको पता था ये सिद्धियाँ प्राप्त करना, ये छोटी मोटी चीज़ें, ये खेलते रहते हैं खिलौनों से अपने. एंड ही इमीडिएटली सेड दैट whoever you are, you should immediately bow down to Lord जगन्नाथ, बिकॉज तुम उड़ीसा में हो और पूरी मंदिर पास में है, क्योंकि तुमने जगन्नाथ जी के प्रति अपराध किया है. तुम बोल रहे हो कि मैं ही विष्णु हूँ, लेकिन असली विष्णु तो जगन्नाथ जी हैं और तुम्हें अभी चलना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और जो भी तुम गलत काम कर रहे हो सब छोड़ दो. और फिर इस जो आदमी था बिस्किसन, इसने कहा क्या वो लकड़ी के जो तुम्हारे जो गुड्डे गुड़िया जो हैं वो भगवान है? विष्णु तो मैं हूँ, मैं क्या लकड़ी के थोड़ी भगवान होते हैं. एंड व्हेन श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ही हर्ड दिस बिकॉज इट वाज अ ब्लास्फेमी. अब वो जगन्नाथ जी को कह रहे हैं लकड़ी के गुड्डे गुड़िया हैं तो. एंड व्हेन जगन्नाथ जी के बारे में उन्होंने ये सुना, ही वॉज ऑफेंडेड. उन्होंने कहा अब तो इसको नहीं छोड़ना, अब बिल्कुल नहीं छोड़ना. उन्होंने सारे सिपाहियों का बोला, सो अभी के अभी गिरफ्तार कर लो और ले चलो इसको जेल. हाँ, सो इसने अलग अलग तरह की सिद्धियाँ दिखाई, कभी आग निकाल रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी सबके ऊपर मिट्टी फेंक रहा है, पूरा तूफान लाकर, खूब इसने खेल खेले ऐसे. हाँ, बट फाइनली बिकॉज जो भक्तिविनोद ठाकुर के साथ में जो सिपाही थे, ये भी इनमें से बहुत सारे हिंदू थे, इन्होंने गिरफ्तार करने से मना कर दिया, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अंदर डर था कि भगवान हुआ तो, सच्ची में भगवान निकला तो. हाँ, बिकॉज नॉर्मली लोग जब इतने पढ़े लिखे नहीं होते, दे आर नॉट दैट मच फिलोसफिकल, उन्हें भगवद गीता नहीं पढ़ी है, दे डू नॉट नो दैट एक्चुअली कृष्णा इज ओनली गॉड, देयर कैन बी नो अदर गॉड. हाँ, अगर भगवान होते तो उनका शरीर चमड़ी का, मल मूत्र का नहीं बना होता, राइट. सो देन भक्तिविनोद ठाकुर ऑर्डर्ड सम मुस्लिम सोल्जर्स कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो मुस्लिम सोल्जर्स हैं उनको बुलाओ, वो अरेस्ट करेंगे, हिंदू सोल्जर्स को नहीं करना, मत करो. हाँ, सो देन ही ऑर्डर्ड मुस्लिम सोल्जर्स टू अरेस्ट एंड फाइनली ही वाज अरेस्टेड. और जब इस बिस्किसन को अरेस्ट किया गया तो इमीडिएटली भक्तिविनोद ठाकुर की जो खुद की हेल्थ थी वो बहुत ख़राब हो गई. ही वॉज जस्ट गोइंग टू राइट डाउन द जजमेंट. उनको जस्ट डेथ सेंटेंस दे रहे हैं या जो भी उनको जजमेंट दे रहे हैं, ही वॉज नॉट एबल टू राइट. उनकी हेल्थ बहुत ख़राब होने लग गई. सिर्फ उनकी नहीं, जब वो घर गए उनको पता लगा उनके घर में सब बीमार हैं. उनकी वाइफ एकदम बेड पे हैं, उनसे हिला भी नहीं जा रहा. उनके जो बेटे हैं, उनकी जो डॉटर हैं, सब के सब बुरी तरह बीमार हैं. हाँ, बट भक्तिविनोद ठाकुर वॉज अनशेकन. उन्होंने कहा अगर हमें सबको मरना है तो मरेंगे, दैट्स ऑल राइट, बट इसने भगवान के प्रति अपराध किया है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा. हाँ, इसको तो मारना ही है, ऐसा व्यक्ति तो जीने के लायक नहीं है. सो फाइनली समवन टोल्ड भक्तिविनोद ठाकुर कि ये जो बिस्किसन को हमने बांधा है, हाँ, तो क्योंकि लोग अब सोच रहे थे कि देखो देखो इसने भगवान को कैद कर लिया ना, ये तो होना ही था इसके साथ में. हाँ, आया बड़ा अपने आपको बनने, केदारनाथ दत्त. भाई डिप्यूटी मजिस्ट्रेट हो, भगवान से पंगा थोड़ी लोगे. भगवान है वो भगवान जिसे तुमने जेल में डाल दिया. जैसे आज भी कुछ लोग बोलते हैं ना, राम रहीम के लिए आसाराम, भगवान है भगवान, जेल में गए, लीला है उनकी. हाँ, दैट्स नॉट ट्रू. हाँ, क्योंकि इस दुनिया में कोई मल मूत्र के शरीर में, हड्डी मांस में भगवान नहीं आते. भगवान यहाँ पर भी आते हैं, उनका शरीर हमेशा सच्चिदानंद रहता है. भगवान के धाम में भी सच्चिदानंद होते हैं, यहाँ पर भी वही सेम सच्चिदानंद रूप में आते हैं भगवान. हाँ, सो भक्तिविनोद ठाकुर वॉज अनशेकन. जो बोलना है कोई बोलो, क्योंकि इसने जगन्नाथ जी के प्रति अपराध किया है, इसको तो नहीं छोड़ना, सिंपल. सो फाइनली ऑन द डे ऑफ जजमेंट भक्तिविनोद ठाकुर ने कैसे कैसे उसको जजमेंट दी. हाँ, एंड समवन टोल्ड भक्तिविनोद ठाकुर कि एक्चुअली जो योगिक मिस्टिक्स होते हैं ना, इनकी सारी पावर्स इनकी शिखा में होती है. सो अगर आप इनकी शिखा काट देंगे ना, इनकी सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी. सो बट नो वन वॉज रेडी टू डू इट. सो भक्तिविनोद ठाकुर हिमसेल्फ वेंट एंड कट ऑफ हिज शिखा. और इमीडिएटली उसको ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया, उसकी सारी पावर्स चली गई. हाँ, और 3 महीने वो जेल में रहा और 3 महीने बाद उसने जहर खा के सुसाइड कर लिया. तो इस प्रकार से उस सो कॉल्ड भगवान की मृत्यु हो गई. हाँ, सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस बिस्किसन. सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वॉज अ फियरलेस आचार्य. सो आचार्यों का एक ट्रेट होता है दैट दे आर ऑलवेज फियरलेस इन प्रीचिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस. दे आर नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग.
So yeah, yes, now Srila Bhaktivinoda Thakur was preaching very very extensively, but उन्होंने क्या किया, he was willing to take a break for 2 years to expand his preaching, क्योंकि now his condition was becoming more stable materially, उनकी जो family है that was becoming stable, he had 10 children and all of them were pure devotees, जिनके पिताजी ऐसे हैं, right? What can we expect from the children? They were all pure devotees. So these children of Srila Bhaktivinoda Thakur, they were all very very respectful, and Srila Bhaktivinoda Thakur, he wanted to take a break for 2 years to go to Navadvip and excavate those places of past times जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं प्रकट की थी, क्योंकि इस समय तक जो भी महाप्रभु की लीलाओं की जो स्थलियाँ थी वो सब लॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 150-200 साल में कोई प्रचार नहीं हुआ, और जो भी लीला स्थलियाँ थी दे वर ऑल लॉस्ट, और जो कि महाप्रभु को गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ 100, 150, 200, 300 साल हुए हैं, दैट्स इट. So at this time when Bhaktivinoda Thakur wanted to take a break, so जो British government थी, they were so much they were trusting Srila Bhaktivinoda Thakur so much, तो उन्होंने क्या किया कि आप ब्रेक मत लीजिए, हम आपको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, आपको हम नदिया डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे, आप प्लीज़ ब्रेक मत लीजिए. तो उन्होंने क्या किया, जो भक्तिविनोद ठाकुर का जो घर था वहाँ से लेकर कोर्ट तक एक पटरी बिछा दी, और उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती थी जो सिर्फ भक्तिविनोद ठाकुर को कोर्ट से उनके घर तक लेके जाएगी और घर से उनको कोर्ट तक लेके जाती है. सिर्फ एक ट्रेन चलती है पूरे एरिया में और सिर्फ उनके लिए स्पेशली. हाँ, so this was the level of Srila Bhaktivinoda Thakur, because he was very very efficient in his work. और जो केसेस कोई रिजॉल्व नहीं कर पाता वो भक्तिविनोद ठाकुर मिनटों में कर देते हैं, बिकॉज अ डिवोटीज कॉन्शियसनेस इज वेरी हाई एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर. उनको पता ही ऐसे 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 हैं, एंड ही हैड रेड सो मेनी शास्त्रास. उसके बाद एवरी केस स्टडी ही न्यू, इसने ऐसे किया, इस शास्त्र में ऐसे 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 था, सो ऐसे 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 हो जाएगा, डन, केस सॉल्व, फिनिश. हाँ, सो दिस वाज श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर. सो व्हेन ही वाज इन बंगाल, he had started more than 500 नामहट्टा प्रोग्राम्स. सो नामहट्टा प्रोग्राम क्या होता है कि एक जो सेंटर होता है वहाँ पर डिवोटीज साथ मिलते हैं, कुछ हरी कथा होती है वीकली या डेली या बाई वीकली, एक हफ्ते में 2 बार जैसे भी, और वहाँ पर सब मिलके चैंटिंग करते हैं, वहाँ पे हरिनाम संकीर्तन होता है. इट्स लाइक एन इस्कॉन सेंटर ओनली. हाँ, बट वहाँ पे उस समय नाम इस्कॉन नहीं था, तो यूज्ड टू कॉल एज नाम हट्टा. हट्टा मीन्स जो एक शॉप होती है, नाम मीन्स हरिनाम, ऐसी जगह जहाँ पे आप जाके नाम ले सकते हो, राइट. जैसे दिल्ली हाट मीन्स क्या मिलता है, सारा सामान मिल जाता है वहाँ जाके आपको. हाँ, सो सिमिलरली नाम हट मीन्स देयर अ प्लेस यू कैन गो एंड यू कैन टेक द होली नेम. अब वहाँ पर जाकर नाम ले सकते हैं. सो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर स्टार्टेड 500+ नाम हट्टा प्रोग्राम्स विद 2000 कॉन्ग्रीगेशन मेंबर्स इन ईच ऑफ देम. मीन्स हर एक नाम हट्टा प्रोग्राम में 2000 लोग जुड़े हुए थे जो वहाँ पर आते थे और हरि नाम लेते थे. तो इतना एक्सटेंसिव प्रोग्राम था उनका. एंड श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ही कहा करते थे कि आप किसी महान वैष्णव को कैसे पहचान सकते हो कि बहुत ही महान वैष्णव है, ये देखकर कि वो कितने भक्त बनाते हैं. हाँ, अगर एक वैष्णव है बहुत सारे भक्त बना रहा है, वी शुड कंसिडर दैट वैष्णव टू बी वेरी वेरी एलिवेटेड, वेरी एलिवेटेड. सो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने केवल नाम हट्टा प्रोग्राम से कितने भक्त बनाए, ये देखिए, 500 नाम हट्टा सेंटर मल्टीप्लाइड बाय 2000 इन ईच ऑफ देम, कितने हो गए, 10 लाख. यस, सो 10 लाख भक्त भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसे ही बना दिए सिर्फ ये 2 साल के अंदर अंदर, लाइक दैट. एंड दैट एक्सटेंसिव वाज हिज प्रीचिंग. सो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की जो विजन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, इतनी ज़्यादा दूर का सोचते थे, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज नॉट जस्ट सेटिस्फाइड विद प्रीचिंग इन इंडिया. ही हैड अ विजन दैट दिस प्रीचिंग शुड बी स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. इसलिए श्रीला प्रभुपाद कहते थे दैट द रियल person who had actually expanded this Krishna consciousness movement is Srila Bhaktivinoda Thakur. What I am doing is just the remnants. किसी डिवोटी ने श्रीला प्रभुपाद से एक बार पूछा that Srila Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Thakur is the designer. He was the one who had designed this everything. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also expanded it so much. Why did they not preach in the West also? वो खुद भी कर सकते थे, उन्होंने खुद क्यों नहीं किया? And they left it to you. Srila Prabhupada said that yes, definitely they could do it themselves, but they wanted to give me the credit. केवल वो क्रेडिट मुझे देना चाहते थे, बट वास्तव में तो उन्होंने ही किया है. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर at that time
इन 1870s और 80s उन्होंने कुछ एक बुक लिखी, लॉर्ड चैतन्य हिज लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स. सो दिस बुक वॉज सेंट इन द यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड. सो उन्होंने ये भेजी थी. कनाडा में एक मैकगिल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एक उनकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर. सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपनी ये बुक किसके बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जबकि वेस्ट में उनको कुछ नामो निशान नहीं पता कि दे डू नॉट नो इवन अबाउट कृष्णा, व्हाट टू स्पीक ऑफ लॉर्ड चैतन्य. बट ठाकुर भक्तिविनोद वाज सो मच optimistic that one day everyone will know about Lord Chaitanya. So thinking this, he had sent one copy in across the world in all the universities. So when later on Srila Prabhupada went to Canada, he was preaching. So one of his disciples, who is now is Srila Gopal Krishna Maharaj, he was at that time studying in McGill University. So Gopal Krishna Maharaj was a student there. He was doing his MBA. So because he was studying, so Prabhupada told him, oh, it's the same university, can you check if this book is there? So Gopal Krishna Maharaj went to that university. उन्होंने पूरा सर्च किया and he found that book. उसमें भक्तिविनोद ठाकुर का नाम था, वही same book he found after 75 years and he presented it to Prabhupada. Prabhupada, this is the same book. इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर had sent 75 years ago to this university. हाँ, so that book is still there in that university. आज भी वो है वहाँ पे. So this was the vision of श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कि एक दिन ऐसा प्रचार होना चाहिए कि हम पूरे वेस्ट में एक एक जगह पर एक एक यूनिवर्सिटी में एवरीवन नोज अबाउट लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु. सो द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट contribution which Srila Bhaktivinoda Thakur gave was when he was in Navadvip. So he wanted to excavate that place of birth of Lord Chaitanya. क्योंकि हम जानते हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बचपन में नाम था वो था निमाई पंडित. और ये नाम क्यों था? हाँ, क्योंकि वो नीम, उनके जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ था, तो प्यार से उनको बोला जाता था निमाई. बट देन वेयर इज दैट नीम ट्री? क्योंकि जो भी डिवोटीज थे वहाँ पर उन्होंने प्रचार पिछले 2 साल से नहीं किया. अब एकदम से नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट दैट प्लेस. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का जो घर था, तो अगर हम कभी मायापुर जाएंगे, वी हैव दैट प्लेस. उसका नाम है स्वनंद सुखा कुंज. आज भी है, और आज भी वही सेम बिल्डिंग, वही सेम स्ट्रक्चर, वही सब कुछ है. तो वहाँ पर ऊपर का एक रूम है जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर के ओरिजिनल आर्टिकल्स रखे हैं. एक हैंड फैन रखा हुआ है, उनका खुद का बेड है, एवरीथिंग इज देयर प्रिजर्व्ड. हाँ, इस्कॉन डिवोटीज मेंटेन करते हैं वहाँ पे. सो वहाँ पर यू सी देयर इज अ विंडो. सो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर देखते थे, बीच में गंगा आती है वहाँ पे, उनका नाम है जलांगी रिवर. तो गंगा वहाँ पे स्प्लिट हो जाती है एक्चुअली, हाँ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में. तो वहाँ पर जो जलांगी है उसके उस पार श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वॉज सीइंग इन द नाइट अपनी विंडो से, एंड ही वॉज सीइंग दैट देयर इज एन इफल्जेंस कमिंग, बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही है. सो रात में ये भक्तिविनोद ठाकुर वहाँ जाते हैं, नदी पार करते हैं, गंगा पार करते हैं, उस तरफ जाते हैं, और वहाँ बहुत सारे तुलसी के पौधे होते हैं, बहुत सारे, और आसपास कोई दूर दूर तक तुलसी का पौधा नहीं है. नवद्वीप मायापुर में, दिस वॉज द कोर सेंटर ऑफ मायापुर. और वहाँ पर एक ही जगह पर थोड़ा सा एक हिल सा है, उस हिल पे बहुत सारे तुलसी के पौधे ही पौधे हैं, एंड देयर इज लाइट कमिंग, इफल्जेंस. सो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, he goes there and he sees a vision of Lord Chaitanya at that place. Lord Chaitanya gives him a vision, and he is almost completely assured that this is the birthplace of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. But now he wants to confirm this. और वो confirm करते हैं किससे? Now he goes to his spiritual master. So Srila Bhaktivinoda Thakur in his very young age took initiation. उन्होंने जो दीक्षा ली, वैष्णव दीक्षा, वो ली थी श्रीला विपिन बिहारी गोस्वामी से, राइट. बट जो शिक्षा लिया करते थे वो लेते थे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज से. तो जो आपने वैष्णव परंपरा देखी अभी, ये हमारी शिक्षा परंपरा है, एंड शिक्षा परंपरा इज मोर इम्पोर्टेंट देन दीक्षा परंपरा. हाँ, तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो जिनसे उनका ज़्यादा कनेक्शन है, वो है श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज. सो जब वो श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के पास गए, सो हिज एज एट दैट टाइम वॉज 140 ईयर्स. जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज 140 ईयर्स, and he was very very thin, almost in skeletal position, skeletons में आ गए थे वो. हाँ, but he was in ecstasy, always chanting Gauranga Gauranga, Hare Krishna, like that, always in ecstasy. So because now he was so old कि उनकी eyelids भी खुलती नहीं थी. अगर उन्हें कुछ दिखाना होता था तो उनके जो सर्वेंट थे वो उनकी eyelids खोला करते थे, बोलते थे श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आपके प्रिय शिष्य भक्तिविनोद ठाकुर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं. तो उनकी आईलिड्स खोलते थे, जब मिलने देते थे आईलिड्स बंद कर देते थे ऐसे, बिकॉज ही वॉज सो ओल्ड कि उनकी आईलिड्स भी
खुलती नहीं थी. So when Srila Bhaktivinoda Thakur came to Srila Jagannath Das Babaji Maharaj, he told कि Srila Babaji Maharaj, so मैंने यहाँ पर एक ऐसा विजन देखा है कि यहाँ पर मायापुर के एकदम सेंटर में, गंगा के जस्ट पास में एक ऐसा एक स्थान है जहाँ पर केवल तुलसी के बहुत सारे पौधे हैं और रात में वहाँ पे बहुत ही इफल्जेंस आती है. एंड देयर आई सॉ अ विजन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु विद पंच तत्व. वहाँ पे पंच तत्व थे और श्री चैतन्य महाप्रभु थे. तो मैंने ऐसा एक विजन देखा है. तो आप प्लीज़ मुझे कंफर्म करके बताइए क्या यही जन्म स्थान है श्री चैतन्य महाप्रभु का. तो जगन्नाथ दास बाबाजी ने कहा, बाबाजी महाराज ने बोला कि मुझे वहाँ पर ले चलो. सो दैट नाइट श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वेंट देयर, बट ही वॉज अलॉन्ग विद जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज. बट जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक. सो उनके जो सर्वेंट हैं उनको एक टोकर में सर पे लेके चलते थे. उनको टोकरे में रखेंगे और टोकरा सर पे रखेंगे, इस तरह से उनको लेके चलेंगे. So in the night when they reached there, again there was similar effulgence. There were many tulsi plants, and again the Lord gave his vision. And this Jagannath Das Babaji Maharaj immediately jumped from that bucket, जो भी उनका सर पे था, jumped and started dancing. यही है निमाई जन्म स्थान, यही निमाई जन्म स्थान. And he started dancing, Gauranga, Gauranga. And then Bhaktivinoda Thakur was confirmed, yes, this is the place where Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu was born. That is the place. So ये श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का one of the most important contributions माना जाता है. That he was the one who discovered once again the birthplace of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Bhaktivinoda Thakur wrote more than 100 books in glorification of the Lord, and these were very very deep and very very philosophical. So Srila Bhaktivinoda Thakur जी की खास बात क्या है, जो हमारे 6 गोस्वामीज ने जो बुक्स दी हैं, they are still very very esoteric. Esoteric means जो तत्व समझाते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप और एज कंडेंस्ड है. हाँ, कंडेंस मीन्स an ordinary person cannot understand. बट जो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने जो बुक्स दी हैं उनको इतना सिंप्लीफाई करके समझाया है और इतना ईजिली समझाया है दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड. एनीवन मीन्स हमारे लिए तो वो भी नहीं है, हमारे लिए पहले प्रभुपाद जी की बुक्स हैं. सो व्हेन वी रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स, then we will become qualified to read the books of other acharyas. ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं पढ़ेंगे, we will definitely read. हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, ये सपने की तरह होना चाहिए कि एक दिन आएगा that I will read the books of our acharyas. एक दिन आएगा I will read the books of Srila Bhaktivinoda Thakur, I will read the books of Srila Jeev Goswami. ऐसा हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए. But presently we should read the books of Srila Prabhupada. जब हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे then Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur will be pleased with us and he will guide us and he will reveal his books. जब हम उनकी बुक्स पढ़ेंगे then Srila Bhaktivinoda Thakur will be pleased and he will reveal his books in our heart. तो इस तरह से we go step by step. हाँ, तो Srila Bhaktivinoda Thakur has written a lot of Vaishnav songs. Even जो हम ये गाते हैं, जय राधा माधवा कुंज बिहारी जया गोपीचन वल्लभा गिरिवरधारी. Who has written this? Srila Bhaktivinoda Thakur. And what else do we sing? Jayo Jayo Gaura Chande Arati Ko Shobha Jana Vitata Vane Jagaman Lobha. Who has written this? Yes, Srila Bhaktivinoda Thakur. And I would say that most, like a lot of songs, Vaishnav songs, close to 40%, जो भी आप देखोगे ना, close to 40% have been written by Srila Bhaktivinoda Thakur. 40-45%, maybe even more. हाँ. So what is the speciality of these Vaishnav songs? ऐसा Srila Prabhupada बोलते हैं that the speciality of these Vaishnav songs is that our acharyas have summarized whole of the philosophy in a very very beautiful, poetic and rhythmic form in these Vaishnav songs. अगर कोई वैष्णव सॉन्ग्स को किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव से सुन लेता है और उनका तात्पर्य समझ लेता है, मीन्स दैट पर्सन हैज़ अंडरस्टूड ऑल द फिलोसफी. उसको भगवत नाम जानने के लिए इतना काफ़ी है. अगर कोई सारे के सारे वैष्णव सॉन्ग्स को अच्छी तरह से सुनकर उनका परपोर्ट को एसिमुलेट कर लेता है अपने अंदर, दैट इज सफिशिएंट टू गो बैक टू कृष्णा ऑल्सो. हाँ, सो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर Yeah. So when he was in Nadia district, so at that time he wanted to construct a temple
फॉर श्रीमान महाप्रभु, फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु. सो उसके लिए व्हाट ही डिड वाज ही हैड अ प्रीचिंग टेक्निक. उन्होंने अपनी वाइफ को बोला दैट वी विल गो टू एवरी हाउस, वी विल कलेक्ट 1 रुपी फ्रॉम एवरी हाउस. हम हर एक किसी से क्या क्या करेंगे, 1-1 रुपया मांगेंगे. कोई ज़्यादा भी दे तो भी 1 मांगेंगे. क्यों? बिकॉज एवरी वन शुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स मेकिंग ऑफ अ टेम्पल फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु. इससे क्या होगा, उन सबको कृपा मिलेगी. सो एवरी डे दे यूज टू गो एंड दे यूज टू आस्क फॉर 1 रुपी फ्रॉम ईच होम. बट एक बार देयर वाज अ वेरी वेरी रिच मैन. सो जब भक्तिविनोद ठाकुर जी की वाइफ एक घर में गई, सो दे गेव हर 10 रुपीज़. हमारे पास बहुत पैसा, आप 10 रुपीज़ ले लीजिए. हाँ. So when Srila Bhaktivinoda Thakur's wife, she came home and gave 10 rupees she got from one home. Srila Bhaktivinoda Thakur was not happy. So he told that आपने क्या किया, आपने ऐसे 9 घरों का जो फॉर्च्यून था भगवान की सेवा में लगने का, आपने उनसे वो छीन लिया. हाँ. तो अगर वो 1-1 रुपया सब देते, उन सबको वो कृपा मिलती, लेकिन अब ये सारी कृपा किसको होगा, एक को मिल जाएगी. सो इसलिए फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स हिज वाइफ वुड रिफ्यूज. अगर कोई ज़्यादा पैसे भी देता था, शी वुड ओनली आस्क फॉर 1 रुपी, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन गेट दैट मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु. सो नाउ अगेन लॉर्ड Srila Bhaktivinoda Thakur was staying in Odisha. He came back. So he was in Odisha in Jagannath Puri, and you will see that still even till date Srila Bhaktivinoda Thakur's home, that house is still there right next to the Puri temple. जो पुरी टेम्पल की मेन रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं आई थिंक, उस रोड पर ही श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर का घर है. आई थिंक अराउंड 200 मीटर्स ही पहले है. सो हर साल उनके घर के बिल्कुल आगे से जगन्नाथ रथ यात्रा जाया करती थी हर साल. और कई बार बिकॉज ही वॉज अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, उनके घर के बाहर कई बार जगन्नाथ रथ को रोका जाता था ताकि उनके घर में जो हैं सब दे कुड टेक ब्लेसिंग्स इस तरह से. बट नाउ श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ही हैड सच इंटेंस प्रीचिंग डिज़ायर. ही हैड सो मेनी प्लान्स कि ये ऐसे प्रचार होना है, यहाँ पे ऐसे प्रचार होना है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे ऐसे करना है. बट ही वॉज नाउ गेटिंग ओल्ड. उनका शरीर अब इतना काम नहीं करता था. हाँ. बट ही हैड इंटेंस डिज़ायर टू प्रीच. सो हमारे आचार्य का एक और लक्षण ये होता है, उनका शरीर साथ नहीं दे रहा होता, लेकिन उनकी जो डिज़ायर होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि वो शरीर को घसीट रहे होते हैं कि किसी तरह से और ज़्यादा प्रचार हो जाए, थोड़ा सा और, बट शरीर कहीं ना कहीं पीछे रह रहा होता है. हाँ. So this is another qualification of our acharyas. So Srila Bhaktivinoda Thakur was praying intensely to the Lord कि I want to preach, मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ. I've only written books. मैंने अभी केवल फिलोसफिकली ही चीज़ें क्लियर की हैं, बट ये फिलोसफी दूसरों को बताएगा कौन? अगर ये मेरे तक ही रह गई, व्हाट इज़ द यूज़? इनको प्रिंट करना है, इनको दूसरों को अभी बताना है, राइट? हु विल डू दिस? सो ही यूज्ड टू प्रे टू द लॉर्ड दैट प्लीज सेंड फॉर समवन, कृपा करके किसी को भेजिए जो मेरे इस अधूरे मिशन को आगे ले जा सके. सो वेरी सून Srila Bhaktivinoda Thakur was blessed with a son, and this son was not an ordinary son. He was a Paramahans Vaishnava, and his name was Bimla Prasad, and this was that ray of Vishnu. He was that ray of Vishnu whom Srila Bhaktivinoda Thakur had prayed for, that please send for someone, and Lord had heard his prayers, and he had sent one of the very very intimate associates he had in Golok Vrindavan to Bhaktivinoda Thakur to assist him. So later on this Bimla Prasad becomes Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. So when Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was born, he was still very young. He was just a couple of days old. तो उस समय पर क्या हुआ था कि जगन्नाथ रथ यात्रा हुई, और जगन्नाथ रथ जो है उनके घर के आगे रुका, बिकॉज ही वॉज दिस डिप्यूटी मैजिस्ट्रेट. सो जगन्नाथ रथ उनके घर के आगे रुकता था, एंड हिज वाइफ श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर's wife brought that little बिमला प्रसाद टू टेक द दर्शंस ऑफ जगन्नाथ. तो उस समय क्या होता था, जगन्नाथ जी के रथ पर भी चढ़ना अलाउड होता था, एंड बिकॉज she was wife of deputy magistrate, so she was escorted very near to जगन्नाथ जी. सो उन्होंने क्या किया, जो छोटे श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी हैं उनको उनके चरणों में रख दिया जगन्नाथ जी के, और जगन्नाथ जी की जो खुद की माला थी वो उसी समय गिरी और सीधा उनके ऊपर, उस बच्चे के ऊपर. हाँ. एंड दिस वॉज अनदर प्रूफ टू श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कि उनकी जो इच्छा थी दैट ही वांटेड अ रे ऑफ विष्णु, वो इच्छा पूरी हो चुकी है. एंड दिस स्मॉल चाइल्ड इज़ नॉट ऑर्डिनरी. He will complete that incomplete mission of
Srila Bhaktivinoda Thakur. So years later, when Srila Bhaktivinoda Thakur was bad in health, so otherwise Bhaktivinoda Thakur would used to go to places and places, वहाँ पर जाकर lectures दिया करते थे, वहाँ पर जाकर भक्ति के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्टेब्लिश किया करते थे, जिनके पास भी कुछ भी मिसकंसेप्शंस थे भक्ति के बारे में उनको काटा करते थे. सो एक बार एक उनको इन्विटेशंस आया, क्योंकि उस समय क्या था, ये नीची जाति ऊंची जाति ब्राह्मण शूद्रा ये बहुत चलता था. हाँ, सो एक बार कुछ ऐसा एक डिबेट हुई कि ब्राह्मण ऊँचे हैं या वैष्णव ऊँचे हैं. हाँ, सो एक ये डिबेट हो रही थी. सो उस डिबेट में इन्वाइट किया गया श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर को कि आप आइए और इसको क्लियर कीजिए. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर की हेल्थ ठीक नहीं थी, तो ही आस्क्ड हिज सन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टू गो इन हिज प्लेस. तो श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया, अपने नोट्स बनाए और उन्हें दिखाए श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर को. एंड श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर वाज सो प्लीज्ड, बीइंग वेरी प्राउड ऑफ हिज सन कि बहुत ही अच्छे नोट्स हैं. हाँ, एंड देन फाइनली ही वेंट एंड उन्होंने क्या किया, पहले एक दिन तो बहुत ही ग्लोरीफाई किया ब्राह्मणों को कि ब्राह्मण तो वो होते हैं जिनके मुख से भगवान पाते हैं, ब्राह्मण तो ऐसे हैं, ब्राह्मण तो वैसे हैं. एंड देन नेक्स्ट डे ही टोल्ड कि आजकल के ब्राह्मण कैसे हैं और सब के सब शांत एकदम. एंड देन ही टोल्ड कि वैष्णवों की क्या पोजीशन है, दैट वैष्णवास आर एक्चुअली द वेरी वेरी कोर इंटीमेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. हाँ, और जब ब्राह्मण अपनी परफेक्शन रीच करता है देन ही बिकम्स अ वैष्णव. तो जहाँ ब्राह्मण खत्म होता है वैष्णव वहाँ से शुरू होता है, राइट. So everyone was stunned. So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur used to say at one point he was a big scholar. जैसे Srila Prabhupada ने कहा है, in the whole history there have been two scholars. One is Srila Jiva Goswami and second one is my Guru Maharaj. These two scholars. So इतने scholar थे Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, but उनसे पूछा जाता था कि आपकी सबसे फेवरेट सेवा कौन सी है. तो वो कहते थे मेरी फेवरेट सेवा ये है कि जब श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहीं पर जा रहे हो कहीं लेक्चर देने, तो उनका जो सूटकेस कैरी करने की जो सेवा है ये मेरी फेवरेट सेवा है. आई लाइक दिस द मोस्ट. अगर ये सेवा मुझे मिलती है मैं इसको कभी नहीं छोड़ता. हाँ, he used to love this service. So yeah, and in the final years of Srila Bhaktivinoda Thakur, he was absorbed in his bhajan because he was not able to preach extensively. So that preaching whole responsibility was given to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, जिनके बारे में हम आने वाले कुछ महीने में सुनेंगे, क्योंकि हाँ कुछ महीने में we will hear about him. But when Srila Bhaktivinoda Thakur was going to take Babaji Vesh, means because when he knew that he had just a few more years to live, he wanted to go deep into bhajan, very very deep into his realizations of chanting Hare Krishna Mahamantra. So at that time he retired from preaching services in the final 2-3 years, and whole time 24 hours he used to just chant the holy names of the Lord. And by this time Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur had established Gaudiya Math and he was preaching extensively. So he had sent 2 brahmacharis to assist Bhaktivinoda Thakur while he used to do bhajan 24 hours. So at that time Srila Bhaktivinoda Thakur wrote one letter to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati, and I will read that letter. Okay. So he writes, Saraswati, people of this world who are proud of their own aristocratic birth cannot attain real aristocracy. जो लोग अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं इस दुनिया में, बहुत मटेरियलिस्टिकली अपने आप को पहुंची हुई चीज़ समझते हैं. हाँ जी ब्रो जी, बिल्कुल ले लीजिए. एक्चुअली हम भी बस फ्री हो रहे हैं 5 मिनट में, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन है इसके बाद 5:30 डॉट, क्योंकि उसके बाद अगला बैच स्टार्ट होगा 5:45 से. सो वी विल वाइंड अप वेरी क्विकली नेक्स्ट 5 मिनट्स. सो दिस इज Srila Bhaktivinoda Thakur's letter to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. He writes, actually इसका है, चार्जर है. So he writes, people of this world who are proud of their own aristocratic birth cannot attain real aristocracy. जो अपनी भौतिक विद्या का बहुत उन्हें वो है प्राइड है कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, बहुत विद्वान हूँ, they cannot attain the real aristocracy which is love of God. Even Srila Bhaktivinoda Thakur wrote at one point कि जो भौतिक ज्ञान है, ये भौतिक ज्ञान वास्तव में जिसमें बहुत ज़्यादा इच्छा है भौतिक ज्ञान की, वो that person cannot attain Krishna, because ये चीज़ें opposite चलती हैं. हाँ, किसी के पास भौतिक ज्ञान naturally है या due to duties he has to take, then that can be utilized in Krishna's service. लेकिन बहुत ज़्यादा inclination होना कि बहुत ज्ञान इकट्ठा करूँगा, उससे बहुत मज़े करूँगा, फिर बहुत ज्ञानी बन जाऊँगा मैं. So this is
against Krishna consciousness. Whatever is needed, that should be just to maintain body and soul. That is sufficient. So he further says that therefore they attack the pure Vaishnavas. जो ऐसे बाहर के लोग हैं, बहुत कर्मी हैं, they attack Vaishnavas, saying they have taken birth in a low class families because of their sins. Thus they commit offenses. So ऐसे लोग क्या हैं? They commit offenses. The solution to the problem is to establish the order of Daiva Varnashram Dharma, something you have started doing. So ये भक्तिविनोद ठाकुर जी फाइनल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी को, दैट आपकी सेवाएं क्या क्या होंगी इसके आगे, आपको कैसे कैसे गौड़िया मठ इस्टेब्लिश करना है, कैसे कैसे आपको सब कुछ धीरे धीरे करके वन आश्रम सोसाइटी इस्टेब्लिश करनी है. हाँ, ही इज फर्दर राइटिंग, यू शुड नो दैट टू बी द रियल सर्विस टू द वैष्णवास, बिकॉज प्योर डिवोशनल कंक्लूजन्स आर नॉट बीइंग प्रीच्ड. कि दुनिया में कहीं भी भक्ति का प्रचार नहीं हो रहा है. ऑल काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस, हर प्रकार के जो सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास हैं, एंड बैड कॉन्सेप्ट्स आर बीइंग कॉल्ड डिवोशन. हर प्रकार के अंधविश्वास को भक्ति मान लिया जाता है, एंड आर बीइंग कॉल्ड एज डिवोशन बाय सच स्यूडो संप्रदायस. ये जो सब सहजिया, अप संप्रदाय और आतिबाड़ी हैं, ये सब उसी को ही भक्ति बोल रहे हैं. क्यों? क्योंकि असली भक्ति के प्रिंसिपल्स का प्रचार नहीं हो रहा है, इसलिए. सो प्लीज ऑलवेज क्रश दीज एंटी डिवोशनल कॉन्सेप्ट्स. ये जो एंटी डिवोशनल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको क्रश कर दो. सो दिस मूड वॉज टेकन अप बाय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. ही यूज्ड टू क्रश दिस एंटी डिवोशनल concepts. So further he writes, by preaching your pure devotional service conclusions and by setting an example through your personal conduct, अपने personal conduct से और preaching से. Further he says, please make great effort so you can start श्रीधाम नवद्वीप परिक्रमा. हर साल अभी भी होता है ये. So उस समय उन्होंने स्टार्ट किया था श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कि हर साल पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा होगी. तो ये 5 दिन चलती है परिक्रमा, आज भी होती है. आई पार्टिसिपेटेड इन 2021 इन दैट ईयर. हर रोज़ आपको कुछ 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, 15-20 किलोमीटर. सो दिस मच इज़ देयर फॉर 5 days. सो 100 किलोमीटर हो जाता है ये आराम से. सो उसमें क्या, आप यू गो टू एवरी प्लेस. जहाँ जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु की पास टाइम्स हुए थे, यू गो टू एवरी प्लेस. कभी बोट से, कभी पैदल, कभी रिक्शे पे, लाइक दैट. सो ही सेज दैट प्लीज डू दिस नवद्वीप मंडल परिक्रमा as soon as possible. It is by those actions that everyone in this world will receive Krishna Bhakti. Please try very hard to make sure that the service to Sri Mayapur will become a permanent thing and will become brighter and brighter every day. So उन्होंने क्या बोला कि मायापुर धाम की सेवा जो है, this is very important, you should do this seva. So it is said that there is no difference between Vrindavan and Mayapur. There is no difference at all. So the real service to Sri Mayapur can be done by acquiring printing press, डिस्ट्रीब्यूटिंग डिवोशनल बुक्स एंड संकीर्तन एंड प्रीचिंग. सो हमारे सारे आचार्यों का फोकस किस पे रहा है? प्रीचिंग पे. बिकॉज वी हैव सीन, अगर प्रीचिंग स्टॉप होती है तो क्या रिजल्ट्स आते हैं. ये जो अप संप्रदाय हैं, ये बीच बीच में उफनने लगते हैं, और जब ऐसा होता है तो सारे की सारी पिछली मेहनत जो है खराब हो जाती है. एंड देन लॉर्ड हैज़ टू सेंड समवन वेरी वेरी पावरफुल, ताकि वापस से दिस रियल पाथ कैन बी शोन. जैसे कई बार क्या होता है, जंगल के बीच में से आपको दिखेगा कुछ रास्ता होता है, पगडंडी होती है, राइट. हमने सबने देखी है पगडंडी. अगर पगडंडी पे कोई चलना छोड़ दे, क्या होता है, धीरे धीरे करके वहाँ पर भी झाड़ियाँ उग जाती हैं और रास्ता बंद हो जाता है, बिल्कुल बंद. सो फिर से किसी को आना पड़ता है और उस झाड़ियों को काट कर रास्ता दिखाना पड़ता है. सो जब प्रीचिंग बंद हो जाती है तो क्या होता है, ये जो रास्ता होता है ये बंद हो जाता है. एंड सम आचार्य हैव टू कम टू शो द पाथ वंस अगेन. सो इवन बिकॉज दिस मूवमेंट बिलोंग्स टू श्री चैतन्य महाप्रभु. So Sri Chaitanya Mahaprabhu will do everything to make sure that for the next 10,000 years this will go on. So even कुछ लोग पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा हो गया फिर भक्ति कैसे हो पाएगी, ऐसा हो गया फिर प्रचार कैसे होगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो. But we should know that Lord Chaitanya will always send for someone to preach this message of Krishna consciousness, because it is his mission. Lord Chaitanya has started this Krishna consciousness movement. So he will do everything that is required, and for next 5,000 years ये सिर्फ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा. जो भी हो रहा है अभी, जो भी होगा आगे, that is only to contribute in the pastimes of Lord Chaitanya in this preaching mission. Further he says, please do not neglect to serve Sri Mayapur or to preach for the sake of your own reclusive bhajan.
अपने केवल खुद के भजन के लिए आपको प्रचार नहीं छोड़ना है, क्योंकि उस समय कुछ बाबाजी क्या करते थे कि खुद का भजन करने के लिए, खुद अच्छे से और ज़्यादा भक्ति में उन्नत होने के लिए वो व्हाट दे यूज्ड टू डू इज़ वो भजन करते थे और प्रचार नहीं करते थे. सो ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग कि आप ऐसा मत करना, भजन के लिए प्रचार को मत छोड़ना. एंड देन ही इज सेइंग व्हेन आई एम नॉट प्रेजेंट एनी मोर, जब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, प्लीज़ टेक केयर टू सर्व श्री मायापुर धाम विच इज़ सो डियर टू यू. दिस इज़ माई स्पेशल इंस्ट्रक्शन टू यू. पीपल हु आर लाइक एनिमल्स कैन नेवर अटेन डिवोशन, देयरफॉर नेवर टेक देयर सजेशंस. तो जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं वो क्या है, जानवर के समान है, इसलिए उनका सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है. वो बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रिंटिंग प्रेस की क्या ज़रूरत है, मत करो ये वो, उनके सजेशंस लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जानवरों के समान है. बट डू नॉट लेट देम नो दिस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. बट उनको ये मत बताना कि वो जानवर के समान है तो सही. I had a special desire to preach the significance of such books as श्रीमद् भागवतम, षट संदर्भा. षट संदर्भा क्या है, श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री है जीव गोस्वामी के द्वारा. हाँ, एंड वेदांत दर्शन. तो उनकी बहुत इच्छा थी, भक्तिविनोद ठाकुर जी बता रहे हैं. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं वो पूरी नहीं कर पाया, अब आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. श्री मायापुर विल प्रॉस्पर इफ़ यू इस्टेब्लिश एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर. कि मायापुर कब प्रॉस्पर होगा, जब आप वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश करोगे, प्रॉपर इंस्टीट्यूट. तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर का ही विजन है कि जैसे हम ये देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर ये भी छोड़ दो, जैसे UCLA, MIT, हार्वर्ड, प्रिंसटन. श्री भक्तिविनोद ठाकुर वांटेड अ यूनिवर्सिटी ऑफ दैट स्टैंडर्ड टू बी इन मायापुर टू प्रीच भक्ति. ये उनकी विजन है. हाँ, बट बिकॉज ही कुड नॉट डू इन हिज लाइफ टाइम ड्यू टू सो मच रेजिस्टेंस, ही इज गिविंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू his son, so to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But later on, he further passed it on to Srila Prabhupada, and through Prabhupada, his devotees today made MIHE, Mayapur Institute of Higher Education, जो आज है, but in future it will become very very big. आज भी अच्छा है, अच्छा खासा है. वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री, भक्ति वेदांत, बट आगे जाके और भी होंगे. हाँ, so we'll finish in next 2-3 minutes. मुझे पता जाना आपको. हाँ. So he further writes, never make any effort to collect knowledge or money for your own enjoyment. कभी भी ज्ञान और पैसा अपनी खुद के enjoyment के लिए इकट्ठा मत करना, कभी नहीं. Only to serve the Lord will you collect these things. आप पैसा या ज्ञान क्यों ले सकते हो, केवल भगवान की सेवा के लिए, अपने लिए कभी नहीं. Never engage in bad association because he is father, although he knows कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर शुद्ध भक्त हैं, but being a father, being his well-wisher, he has to speak this, that never engage in bad association either for money or for some self-interest. Signed, Kedarnath Dutt, Bhakti Vinod. So Srila Bhaktivinoda Thakur जब पुरी में थे, he had, because he was a very very great philosopher, very great writer, उन्होंने एक पोयम लिखी थी. वैसे तो उनकी दो बहुत सुंदर पोयम्स हैं. हाँ, उनमें से एक पोयम थी इन द ग्लोरीज ऑफ श्रीला हरिदास ठाकुर. तो हरिदास ठाकुर की जो समाधि है, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम इन चैतन्य चरितामृत, जो हम उनके तिरुभाव तिथि पे ही सुनेंगे, आज नहीं. हरिदास ठाकुर के जब तिरुभाव तिथि होगा, इट इज़ वेरी वेरी हार्ट टचिंग, वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम, उनका तिरुभाव कैसे होता है. सो वी विल लिसन टू दैट. बट उनकी जो समाधि है, वहाँ पर श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने रेनोवेशन कराया था, और उनकी समाधि पर ही रोड दैट पोयम. उसके कुछ स्टैंजास लिखे थे जो भक्तिविनोद ठाकुर ने खुद लिखे थे. उसकी जो लास्ट स्टैंजा है, दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हार्ट टचिंग. उसको थोड़ा पढ़ते हैं, सिर्फ एक वो स्टैंजा उस पोयम का. हाँ, लेट मी सर्च, वो कहाँ है, या इसका नाम था इस पोयम का ओ हरि असारग्राही वैष्णव. तो इसका फर्स्ट स्टैंजा है, ओ बॉर्न ऑफ मुस्लिम पेरेंट्स हरिदास, बिकॉज हरिदास वॉज बॉर्न इन Muslim family, a trained in youth in Muslim creed. Thy noble heart to Vaishnav truth did pass, the holy acts thy candor plead. इनकी इंग्लिश ऐसे लेवल की है ना, मतलब सोच सकते हो आप. तो इसको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ता है समझने के लिए, बट लास्ट लाइन्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल. उसको पढ़ते हैं. He reasons ill who tells that Vaishnavas die. मतलब उसका जो लॉजिक है वो गलत है, जो कह रहा है कि वैष्णवास मरते हैं. हाँ, when thou art still living in sound, जबकि वो स्टिल यहाँ पर हैं, किसमें, अपने शब्दों के रूप में, अपनी बुक्स के रूप में, अपनी वाणी के रूप में. द वैष्णवास डाई टू लिव
एंड लिविंग ट्राई। वैष्णवास मरते और अपना शरीर छोड़ते हैं। हाँ, वैष्णवास डाइड टू लिव मीन्स यहाँ पर भी दे लिव थ्रू देयर वर्ड्स एंड अदरवाइज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड दे लिव इन द कंपनी ऑफ कृष्णा टू सर्व हिम एंड दे डाई टू लिव एंड लिविंग ट्राई। और जब वो यहाँ पर हैं जीते जीते दे कीप ट्राइंग। किसके लिए ट्राई करते हैं? टू स्प्रेड द होली लाइफ, टू स्प्रेड द होली नेम अराउंड। यहाँ पर जब वो हैं दे आर स्प्रेडिंग द होली नेम। ही रीजन्स इल हु टेल्स दैट वैष्णवास डाई व्हेन thou art still living in sound. The Vaishnavas die to live and living try to spread the holy name around. So today this implies to Srila Bhaktivinoda Thakur also, right? So Srila Bhaktivinoda Thakur जी की 3 prophecies थी। prophecies मतलब उन्होंने 3 बातें कही थी which now have become true. उस समय पर people were doubting ये सच होगा भी सही या नहीं होगा, but today we see that it is very very true. बस ये आखिरी चीज़ है, then we'll conclude. The first one was he made the first prediction that a personality will soon appear. ये उन्होंने लिखी थी 1896 में। देखिए बहुत जल्द एक ऐसी पर्सनैलिटी का जन्म होगा। He will travel all over the world to spread the teachings of Lord Chaitanya. कि एक बहुत जल्दी एक व्यक्ति आएगा, एक ऐसा भक्त आएगा जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु का he will be a सेनापति भक्त। हाँ, एक सेनापति भक्त ऐसा आएगा जो कि बहुत जल्द महाप्रभु का प्रचार करेगा। 1896 में ही शिला प्रभुपाद का जन्म हुआ। ही वेंट टू वेस्ट और सेम वही हुआ जो जो कि भक्तिवेदांत ठाकुर जी ने बोला था। हाँ, तो दिस केम ट्रू। सेकेंड प्रेडिक्शन, ही सेड दैट वेरी सून द चैंटिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि बहुत जल्दी जो संकीर्तन है ये पूरे के पूरे दुनिया में फैल जाएगा। और उस समय पे क्या था, ये वो समय था जब अंग्रेज जो है इतना ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं वैष्णविज्म का। यहाँ के खुद के लोग समझते नहीं हैं और इतने सारे अपसंप्रदाय हैं जो कि सोचते हैं कि एक सब गंदे काम जो है यही वैष्णविज्म है। उस समय पर ठाकुर भक्तिविनोद सोच रहे हैं कि एक दिन अंग्रेज लोग जो हैं पूरे की पूरी दुनिया में हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हाँ, ये उनका विजन है। वेरी सून द चैंटिंग ऑफ हरिनाम संकीर्तन विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Oh, when will that day come when the people from America, England, France, Germany, Russia will take up Kartal and Mridanga and chant Hare Krishna in their towns. यहाँ पर ही केवल आके नहीं, वहाँ पर भी। And we see today, due to mercy of Srila Prabhupada, in every town, every major city across the world, this is happening. We see Jagannath Rath Yatra recently happened in New York. अभी कुछ दिन पहले किसने देखा इस पे? हाँ, Times Now पे उसकी वीडियो आई है, right? So by the mercy of Prabhupada, this is happening. And third prediction was, when will that day come? The fair-skinned foreigners will come to Sri Dham Mayapur and join with Bengali Vaishnavas. उनके साथ में मिलकर to chant Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Gaura Hare, Gaura 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 Hare, Nadiya Bihari Gaura Hare. And that is happening today. And next year that will happen at the largest scale when the temple of Mayapur, the temple of Vedic Planetarium, will be inaugurated. So devotees from all across the world will come. और वो टेम्पल इतना बड़ा है कि एक साथ टेम्पल हॉल में देयर कैन बी 15,000 डिवोटीज जो फिट हो जाएंगे। 15,000 डिवोटीज एक टेम्पल हॉल में, बाकी बाहर भी हैं, राइट? सो लैक्स एंड लैक्स ऑफ डिवोटीज विल कम एवरी ईयर, लैक्स एंड करोर्स टू फुलफिल दिस प्रोफेसी ऑफ ठाकुर भक्तिविनोद। एंड श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर, सॉरी, श्रीला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जब हम आपने बताया तो ऐसा एक मंदिर बनाए, बिकॉज प्रभुपाद टोल्ड कि आप ऐसा मंदिर बनाइए, तो डिवोटीज आस्क कि प्रभुपाद जब ये बन जाएगा तो अगर हम इसके इनॉग्रेशन के लिए अगर इंग्लैंड की क्वीन को और यूएस के प्रेसिडेंट को ले आएँ तो ये कैसा रहेगा? श्री प्रभुपाद सेड, इफ़ यू कैन डू इट देन ठाकुर भक्तिविनोद विल हिमसेल्फ कम, ही विल टेक योर हैंड एंड ही विल टेक यू बैक टू गोलोक वृंदावन हिमसेल्फ, ही विल, ठाकुर भक्तिविनोद विल कम। हाँ, एंड लेट्स सी, इट्स नेक्स्ट ईयर, देखते हैं कौन आता है। क्वीन तो बची नहीं, किंग ऑफ इंग्लैंड जरूर बचा है अभी एंड हाँ या प्रिंस चार्ल्स। सो लेट्स सी हु ऑल कम्स एंड जो डिवोटी लाएंगे मे बी ठाकुर भक्तिविनोद विल हिमसेल्फ कम टू टेक देम होम, बट डेफिनेटली एनीवन हु फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ आचार्यस, द आचार्यस विल टेक देम बैक होम। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्णा। अभी हम भाग के जाएंगे हॉल में क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन है और हम लेट हो चुके हैं। भागो। भक्तिविनोद ठाकुर